great to see that. So आज के जो हमारे साथ स्पीकर जुड़े हैं, मिस नितिका मिश्रा, she has 10 plus years of experience in the startup ecosystem, and that's put her into a unique juncture of being a founder of technology companies and an active ecosystem enabler, right? So she has been there, she has done it, she is doing it till now, and she is helping other startups to work according to what is required. So being the founding curator of Startup Accelerator Chamber of Commerce, she's a founding member of our organization also. She has held the baton of facilitating startup weekends in the Chandigarh, Haryana and Punjab region, whilst touching upon thousands of startup dreams and helping many realize their startup potentials. So her current role is building and managing the investment portfolio of Chandigarh Angels Network as Chief Operations. And she takes a keen interest in exploring how technology disrupts consumer behavior and helps Indian startups go global. So I welcome you, ma'am. Hi, Tanushri. I hope I'm visible. Ma'am, right now I am not able to see. Am I visible now? Yes, yes. Okay, yes. Great. You're visible as well as audible. Great. So I welcome you today for the session, and I hope our students get to know more and more from you today. Absolutely, absolutely. I was there from past 5 minutes, and it's a good group of, students who are, and it's really good to see that in these times where everybody is, hearing a lot of stuff, which is not very good to hear. It's good that you guys are, there to learn something new, to move ahead and focus on your journeys and not get affected by anything. तो बहुत अच्छा लग रहा है to see इतने सारे बच्चे online, and I hope कि आज का session सबके लिए beneficial होगा. I would want कि आप लोग interact करो, बात करो, and not just let it be a speech kind of session. We'll talk, we will ask questions. आपको जहाँ पे भी डाउट होता है प्लीज उसको पूछो, बिकॉज आई एम श्योर आप लोगों के लिए ये बहुत नई चीज है, आप सबके लिए ये बहुत ही एक नया डोमेन है. नॉट एवरीबडी इज अवेयर ऑफ हाउ इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग वर्क्स पर से. ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको इंटरेक्टिव रखें. आई विल ट्राई टू कीप माई लैंग्वेज और जो मैं टर्म्स यूज करूंगी मैं कोशिश करूंगी सिंपल से सिंपल रखूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए, और मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वर्ड्स यूज नहीं करूंगी. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे. तनुश्री, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट. यस मैम, यस वी शैल स्टार्ट. ओके ग्रेट. सो गाइस, हम बात करने वाले हैं आज. हाँ, सो देयर वाज वन स्टूडेंट ना जिसने बोला था गुंडागर्दी. बेसिकली वो क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ. व्हेन वी आर सेइंग शट अप एंड टेक माय मनी, उसका मतलब है कि एक स्टार्टअप ने इन्वेस्टर को इतने अच्छे से कन्विंस कर लिया है अपनी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए कि इन्वेस्टर कहता है अब चुप हो जाओ, कुछ नहीं सुनना मुझे, मेरे पैसे ले लो. तो ये वो मतलब है, ये वो वाला मतलब नहीं है कि शट अप एंड डोंट टॉक. ओके, सो इट्स लाइक शोइंग कमिटमेंट. आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी स्टार्टअप को इतने अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो कि आपका इन्वेस्टर जो है वो कन्विंस हो जाता है एंड दे पुट मनी इन योर स्टार्टअप. ठीक है, तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. वील टॉक अबाउट एंजल इन्वेस्टमेंट, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. एक सिंपल सा क्वेश्चन है जस्ट बिफोर आई बिगिन. कोई भी मुझे आंसर करना चाहेगा कि हमें फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई डू वी नीड मनी? हमें किसी और के पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है टू रन आवर बिजनेस? व्हाट डू यू थिंक? व्हाई दिस होल फंडिंग या इन्वेस्टमेंट ये क्यों आता है? अच्छा, ये कोई PU EDU है, एक्सपेंशन, या मेक सेंस, इट्स राइट. ठीक है, बिल्कुल. और कोई आंसर करना चाहता है? To give a head start. To grow the operation of business. Great. Yes, that's right. Absolutely correct. Growing fast. Yes, Tamanna, absolutely right. For growth, increase resources. Correct. Scalability, Mang, absolutely right. To improve the quality, yeah, in a way, yes. If you have funds, तो आप अपनी टीम पे और क्वालिटी पे काम कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक है. Anything else which comes to your mind to get a head start? Yes, right. हाँ जी, please go ahead. मैम, अगर मेरे पास मेरे बिजनेस है, अगर मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करना है, अगर मुझे उस तो शायद मैं फंडिंग की जरूरत पड़ेगी. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सूरज. अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए काजल, राइट आंसर. समटाइम्स फॉर बाइंग इक्विपमेंट्स. करेक्ट, आपने ऑपरेशनल कॉस्ट को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, बिल्कुल.
and going in the right path. Yes, तो अगर आपके पास, yes तमन्ना, that's right, अगर आपके पास सही इन्वेस्टर्स हैं ऑन बोर्ड तो पैसे के साथ साथ आपको एक गाइडेंस मिलती है, क्योंकि वो ये वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, जिनको बहुत एक्सपोजर होता है काम करने का, और ये उतने ही अच्छे से आपको गाइड भी कर पाते हैं अपनी स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए. सो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट तमन्ना. और कोई एनीबडी एल्स बिफोर वी मूव है? किसी का कोई और थॉट है फंडिंग को लेके कि हमें क्यों चाहिए पैसे? ओके, परफेक्ट. गेट मोर पास एक्सपीरियंस होता है मैम ज्यादा. बिल्कुल ठीक है अमित. यस, उनके पास एक्सपीरियंस होता है. मैंने मिस कर दिया, किसी का आया था. गेट मोर पार्टनर्स, दैट्स ट्रू. यस, टू हैव मोर एक्सपीरियंस्ड पार्टनर्स ऑन बोर्ड. बिल्कुल ये सही आंसर है. ठीक है. क्योंकि वो हमारे स्टार्ट में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो वो हमारे लूप होल्स को और वीकनेस को डबल क्रॉस कर मतलब डबल चेक करेगा. डबल चेक करते हैं. बिल्कुल ठीक कह रहे हो अमित. तो एक एक्सपीरियंस फॉर प्रमोशन. यस, बिल्कुल ठीक है. यस, हाँ, फॉर प्रमोशन ऑफ द कंपनी, बिकॉज आप पैसे इन्वेस्ट करके और अच्छे से मार्केट कर सकते हो कंपनी को. ऑल दीज आंसर्स आर एब्सोल्युटली फाइन एंड एब्सोल्युटली करेक्ट. तो आप लोगों को आइडिया है कि बेसिकली हमें फंडिंग रेज क्यों करनी है. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम इस चीज को कैसे इंश्योर करें कि हम फंडिंग के लिए फंडिंग लेने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, और उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है, और हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो मैं प्रेजेंटेशन भी शेयर कर लेती हूँ फॉर यू गाइज टू हैव इजी रेफरेंस. जस्ट अ सेकेंड. We are getting an answer. When we get a good investor, we also get goodwill for our startup. Yeah, that's true. Absolutely true. I think all of you are very intelligent and we have a great start in the beginning. तो बहुत मजा आने वाला है. I think we'll have a very interactive session. आप लोग सुनो ध्यान से, और जहाँ पे भी आपको लगता है we'll talk about it, जो भी doubts होंगे, and I hope that आप लोग को अच्छे से समझ में आए and it can be of little bit help to you guys, right? Tanushi, is my screen visible? Yes, ma'am. Presentation? Okay. Yes, it's visible. Perfect, perfect. ठीक है. तो जैसे हमने बोला, अभी हमने क्रिस्प में बात की कि हमें क्यों चाहिए फंडिंग. हमें इसलिए चाहिए बिकॉज हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है. तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं. यू नीड फंड्स, यू नीड टू रेज मनी, और इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट की या फंडिंग की जरूरत पड़ती है. अब 3 तरीके से आप फंडिंग रेज कर सकते हो. वो 3 तरीके क्या है, हम एक एक करके बात करेंगे, बट 3 मेजर तरीके क्या है. एक है बूटस्ट्रैपिंग, दूसरा है FF&F, वो मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, एंड तीसरा है एंजल इन्वेस्टर्स एंड VCs, राइट? तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप फंडिंग रेज कर सकते हैं. तो जब हम बात करते हैं बूटस्ट्रैपिंग की, बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या है. सपोजिटली आज मेरे पास एक आइडिया है जिसको मैं स्टार्टअप में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, और मुझे वो बिजनेस स्टार्ट करना है. तो मुझे तो इनिशियली बिगिन में क्या करूंगी, मैं अपनी सेविंग्स, जो भी मैंने अपनी जॉब से या जो भी मैंने पैसे बचाए विद व्हाटएवर मोड, जो भी मैंने सेव किया, मैं उस पूरे पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगी और मैं उसको एक किक स्टार्ट दूंगी. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग. बूटस्ट्रैपिंग मींस जहां पे आप अपने पैसे के साथ रिस्क ले रहे हो, जो आपका खुद का पैसा है, जो आपकी खुद की सेविंग्स हैं, वो कहाँ से आया दैट डज नॉट मैटर, बट इट्स योर ओन मनी. तो वो है बूटस्ट्रैपिंग. उसमें आप अपने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट शुरू कर सकते हो, या मे बी कुछ लोग उस पैसे से टेस्ट करना चाहते हैं, मार्केट वैलिडेशन करना चाहते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो उसको दे स्टार्ट कुछ उनको सपोज कोई अगर कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेप लेना है तो वो उसके लिए अपना पैसा यूज करते हैं, और उसके बाद उसको एक किक स्टार्ट दे देते हैं, और फिर देखते हैं कि वो आगे आगे कैसे जाएगा और उसको हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएंगे. तो उसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग. बूटस्ट्रैप्ड वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा स्टार्टअप से रिलेटेड. उसका मीनिंग यही होता है कि जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में टू किक स्टार्ट और या उसको आगे लेके जाने के लिए. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग. और दूसरा हमारा मोड होता है FFF, विच इज फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स. अब फूल्स में प्लीज यहाँ पे अब वो गलत वे में मत ले लेना. फ्रेंड्स एंड फैमिली तो आप लोगों को सबको पता ही है. फ्रेंड, फैमिली एंड फूल्स का मतलब यहाँ पे क्या है
यहाँ पे वो लोग हैं जो आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप उनको बोलते हो कि मेरे पास एक बहुत ही एक्साइटिंग आइडिया है और मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है और मुझे उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, आपको कुछ हेल्प की जरूरत है, तो ये वो लोग होते हैं जो आपको ट्रस्ट करते हैं और जो कहते हैं कि ओके हमें कुछ हम वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आप क्या करने वाले हो, क्यों करने वाले हो, कैसे करोगे, स्केल कैसे करोगे, नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाओगे। ये वो लोग हैं जो आपको ट्रस्ट करते हैं और जो आपको पैसे दे देते हैं इजिली। और इस पर्टिकुलर वे से फंड रेज करने में कोई भी हर्ज नहीं है। अगर आपके आसपास आपके फ्रेंड्स, फैमिली या ऐसे कोई भी लोग हैं जो आपको ट्रस्ट करते हैं और जो आपको पैसे देने के लिए रेडी हैं, तो आपको डेफिनेटली वो पैसे ले लेने चाहिए, क्योंकि इट्स एन ईजी मनी। इसमें आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आपको ट्रस्ट करते हैं और जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो आप वो पैसे को लेके अपने बिजनेस को डेफिनेटली किक स्टार्ट कर सकते हो या अपने एक्सपेंशन या ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज योर सेकेंड मोड। पहला मोड था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बूटस्ट्रैपिंग, जहां पे आप अपने ही पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। एंड सेकेंड मोड हो गया वो जहां पे आप अपने आसपास के लोग जो कि आपकी नोन पीपल हैं, वो फ्रेंड्स या फैमिली या वो लोग जो आपको ट्रस्ट करते हैं, आप उनके साथ फंड्स रेज कर सकते हो और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो इनिशियल स्टेज पे, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट मोड और जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे आगे आगे, वो है एंजल इन्वेस्टमेंट। तो अभी हम एंजल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। एंजल इन्वेस्टमेंट वो लोग, एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जिनका काम होता है कंपनीज में इन्वेस्ट करना, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो आप उनको पसंद हो या आप उनको अच्छे लगते हो, नो। वो आपके बिजनेस में तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उनको कुछ रिटर्न मिलेगा, जब उनको दिखेगा कि आज अगर हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आफ्टर 2 years मेरे को क्या मिलने वाला है इन रिटर्न। Is it going to be 3 times of what I invested? Is it going to be 4 times, 5 times? वो उस तरह की कैलकुलेशन पे, प्रोजेक्शन पे बेस्ड कर आज की डेट में आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो इजिली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इनके पास आपके स्टार्टअप के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, हर चीज के लिए देयर आर टन्स ऑफ क्वेश्चंस। वो उनके पास रेडी होते हैं और वो क्वेश्चंस को जब तक आप आंसर नहीं कर पाते हो या जब तक आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो विद योर आंसर्स, या जब तक आप उनको तसल्ली नहीं दिला देते हो कि हाँ एवरीथिंग विच यू आर टॉकिंग अबाउट योर स्टार्टअप इज करेक्ट, एंड वो उनके इनके जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है, मतलब जिस तरीके से वो चाहते हैं कंपनी को ग्रो करते हुए देखना, वो सब फिट हो रहा है, तब तक वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सो ये होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, राइट। ये पैसे तो देते हैं, इनको एंजल इन्वेस्टर्स इसीलिए बोला जाता है बिकॉज दे कम एज एंजल्स आपकी लाइफ में, पैसे देने के लिए रेडी होते हैं। बट इनको कन्विंस करना इज ऑब्वियसली नॉट दैट सिंपल, ठीक है। और क्या क्या चीजें होती है जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब हम एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते हैं, या क्या चीजें हैं जो हमें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए इवन इफ बिफोर वी इवन स्टार्ट ऑफ गोइंग टू एंजल इन्वेस्टर्स, उन सब चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। दैट इज एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ सो दैट आपको इजी रहेगा रिलेट करना। जैसे अभी तनुश्री मैम ने बोला कि आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ एंजल्स नेटवर्क। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इट्स अ कम्युनिटी, इट्स अ नेटवर्क। चंडीगढ़ एंजल्स नेटवर्क मतलब ये एंजल्स का एक नेटवर्क है जहां पे बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो यही करते हैं कि वो स्टार्टअप्स के आइडियाज को सुनते हैं, समझते हैं, जज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उनके आंसर्स वो लेते हैं और उन आंसर्स के बेसिस पे वो एक डिसीजन लेते हैं कि क्या हमें स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ बता रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। और ऐसे एंजल नेटवर्क्स जैसे चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, ऑल ओवर इंडिया अलग अलग सिटीज में एंजल नेटवर्क्स होते हैं। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो नेटवर्क का पार्ट नहीं होते लेकिन वो इन्वेस्ट करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जिनको जो है रेडी विद मनी सेइंग कि हाँ हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड अगर आपकी कंपनी में पोटेंशियल है, आप उनके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो ही वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। अलग अलग नेटवर्क का भी पार्ट होते हैं और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। अब
जब आपने कंपनी स्टार्ट कर ली, ठीक है, आपने अपना काम शुरू कर लिया, आपके पास एक बेसिक कंपनी मतलब टीम है, चाहे वो छोटी टीम हो 2 लोगों की या आप इंडिविजुअली कर रहे हो, जैसे भी है, और आप ट्रैक पे आ चुके हो, आपको पता है कि आपको डे टू डे ऑपरेशंस कैसे रन करने हैं, आपको ये समझ में आ गया है कि आप रेवेन्यू मतलब अर्न कैसे करने वाले हो थ्रू योर प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया जो भी है आपका। अब वो स्टेज पे आ चुके हो जब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ अब मुझे बिजनेस कैसे रन करना है, वो आपको समझ में आ गया है। आपको आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में चल रहे हो जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, या आपकी एक स्मॉल टीम है, लीन टीम है, उसके साथ आप काम कर रहे हो। आपके क्लाइंट्स हैं कुछ, चाहे वो इनिशियल क्लाइंट्स हो 2 3 4 डजंट मैटर, आपके कुछ क्लाइंट्स हैं जो आपको पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हो। अब आपको पता है कि अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, जहाँ पे जो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने आंसर्स दिए ना कि हमें क्यों फंडिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें ग्रो करना है। हमें क्यों फंडिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें अपनी ब्रांड वैल्यू को इम्प्रूव करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि हाँ हमारी कंपनी या हम ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट कर रही है एंड वी हैव समथिंग टू डिलीवर, या हमारे पास कुछ ऐसा है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो वो ब्रांड मैसेजिंग बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास सपोज आपका प्रोडक्ट को और डेवलपमेंट की जरूरत है और आपके पास टीम मेंबर्स नहीं है, तो वो टीम को एक्सपैंड करने के लिए आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, लेकिन बजट नहीं है, तो उस बजट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आ जाते हैं जब आप ऑपरेशनल हो जाते हो। और थोड़े टाइम बाद आपको रियलाइज होता है कि अब आपके फंड्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं और अब आपको फंड रेजिंग की जरूरत है, बिकॉज जब तक आप फंड रेज नहीं करेंगे आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं जा पाएंगे। तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप फंड रेज शुरू करते हो, ठीक है। जब आप फंड रेज शुरू करते हो तो पहले ध्यान रखो कि फंड रेज करना इट्स नॉट दैट सिंपल। तो ये एक बहुत ही फुल टाइम जॉब की तरह हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा कि हाँ चलो मैं फंड रेज करती हूँ या करता हूँ, कल आप गए इन्वेस्टर से मिले और परसों आपका फंड रेज हो गया। इतना सिंपल नहीं होता है ये। इसमें अलग अलग तरीके से राइट नेटवर्क्स को अप्रोच करना, उनको उन तक अपना आइडिया एक प्रॉपर फॉर्मेट में पहुंचाना, ठीक है, उनके साथ एक मीटिंग्स कॉल सेटअप करना, उनके साथ फॉलो अप करना अगर वो आपको रिवर्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उनको जब कॉल स्केड्यूल हो जाती है तो उनको अपना पूरा बिजनेस और आइडिया एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करना। उसके बाद उनको कन्विंस करना कि आपके बिजनेस में पोटेंशियल है, फिर पिच करना इन्वेस्टर्स के सामने, उसके बाद कन्विंस करना कि यस पोटेंशियल है, वो पैसे ले। तो ये एक दिन में नहीं होता है और ये ऐसे आराम से नहीं होता है, तो इट्स अ फुल टाइम जॉब। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगर आप एक फुल टाइम कमिटमेंट के लिए तैयार हो फंड रेज करने के लिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एट द सेम टाइम जब आप फंड रेज कर रहे हो तो आपका काम सफर ना हो, आपकी स्टार्टअप सफर नहीं होनी चाहिए। पता चल रहा है आप फंड रेज कर रहे हो और जो आपका एग्जिस्टिंग ऑलरेडी ऑपरेशंस है वो सफर कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, राइट। तो आप वो बैलेंस करके और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके कि दोनों चीजें कैसे मैनेज करोगे, तब आप फंड रेज करना स्टार्ट करो, ठीक है। और क्या जरूरी है, आप उस टाइम फंड रेज करना स्टार्ट करो जब आपको उसकी जरूरत नहीं है। मान लो आज मेरे को पता है कि मेरे और मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स ले रही हूँ प्लीज, हाँ। तो मान लो आज मेरे बैंक अकाउंट्स में 1 लाख रुपीस हैं और मुझे पता है कि इस 1 लाख रुपए से मैं अपने नेक्स्ट 2 मंथ सर्वाइव कर सकती हूँ और मेरे 2 महीने आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। और आज मैं अपना फंड रेज का प्रोसेस स्टार्ट कर देती हूँ, तो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स भी मैं कम टाइम ले रही हूँ, ज्यादा पहले ही होना चाहिए बट जस्ट हाइपोथेटिकली। तो 2 मंथ्स पहले मैंने वो प्रोसेस शुरू कर दिया और मैंने एंजल इन्वेस्टर्स को, नेटवर्क्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया, सो दैट मेरे को स्ट्रेस नहीं है कि अरे अगर अभी नहीं हुआ 10 दिन में तो मैं कैसे सर्व, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास इतना अभी बैलेंस है कि मेरे नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के ऑपरेशंस निकल जाएंगे, सैलरीज निकल जाएंगी, सारे कॉस्ट एक्सपेंडिचर वगैरह मेरे मैनेज हो जाएंगे। सो आई स्टार्ट डूइंग द फंड रेज फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ठीक है। अब द सेकेंड सिचुएशन इज कि मान लो आज आपको पता है कि यार नेक्स्ट मंथ आपको रन करने के लिए अपने ऑपरेशंस, यू डोंट हैव मनी, देयर इज नो बैलेंस लेफ्ट, you have to pay salaries, you have to take care of the XYZ miscellaneous cost like बिजली का बिल, ये वो। कैसे करोगे? आप एकदम से पैनिक मोड में आ जाओगे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आप इधर उधर एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए रन करोगे, यू विल एंड अप टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। तो वो सब नहीं करना है। इसलिए
वे बियॉन्ड व्हेन यू नो कि हाँ अगले 6 महीने या प्रोबेबली अगले 1 साल तक का जब तक मेरे पास रनवे है, तो आप स्टार्ट कर लो अपना ये फंड रेजिंग का प्रोसेस, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो और आप काम माइंड से इस पूरे प्रोसेस पे फोकस कर सको। ठीक है, नाउ कीप ऑन टॉप ऑफ योर फॉलो अप्स। मीन्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे हमने एक मेल कर दी एंजल इन्वेस्टर को या एक नेटवर्क को, तो इमीडिएटली हमारे को रिप्लाई आ जाएगा कि यू नो व्हाट, यस प्लीज कम, वी विल टॉक एंड वी विल गिव यू मनी। दैट डज नॉट हैपन, बिकॉज अंडरस्टैंड पैसों की जरूरत आपको है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। वो लोग पैसे देने के लिए रेडी हैं, नो डाउट, बट इट इज नॉट देयर प्रायोरिटी। दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, नॉट फॉर देम। तो ये मत एक्सपेक्ट करो कि पहले ही ईमेल के साथ आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। आपका काम है कि आप कॉन्स्टेंट फॉलो अप्स करते रहें, बट फॉलो अप्स भी रीजनेबल होने चाहिए। ये नहीं कि आज सुबह एक मेल कर दी, हाय आई एम लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, काइंडली रिवर्ट बैक, फिर पता चल रहा है शाम को फिर मेल कर दी कि आई एम स्टिल, प्लीज रिप्लाई टू माई मैसेज, अगले दिन फिर मैसेज कर दिया प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है, नहीं तो ये इट सेंड्स अ रॉन्ग सिग्नल। स्टे ऑन टॉप ऑफ योर फॉलो अप्स, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद फॉलो अप करो और सेंसिबल फॉलो अप करो, और कोशिश करो कि कोल्ड ईमेल्स मत करो कि रैंडमली उठा के 15 इन्वेस्टर्स को बीसीसी या सीसी में डाला और मेल डाल दी कि हाय एवरीबॉडी आई एम लुकिंग फॉर। डोंट डू दैट, मेक इट, डू सम रिसर्च कि आप किस इन्वेस्टर को अप्रोच करना चाहते हो, किस नेटवर्क को अप्रोच करना चाहते हो, उनको एक पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखो, अपने आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन करो, और फिर आफ्टर यू नो स्पैन ऑफ 3-4 days देन यू सेंड अ फॉलो अप ईमेल दैट यू नो this is what is happening in my startup, kindly revert back, I would like an opportunity. That's the right way to go about it. हम ना उनके सर पे बैठ सकते हैं रैंडमली कि नहीं रिवर्ट करो, और ना हम कोल्ड ईमेल्स भेजेंगे जहाँ पे हमें पता भी नहीं है कि हम किसको भेज रहे हैं, हम बस रैंडमली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी मेल पढ़ के रिवर्ट आ जाए। तो अपने ईमेल को या अपनी जो अप्रोच है इन्वेस्टर्स को रीच करने के लिए उसको पर्सनलाइज्ड रखिए, और फॉलो अप्स को रीजनेबल बट फॉलो अप करो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया कि रिसर्च द इन्वेस्टर यू आर रीचिंग आउट टू। लाइक ऐसे नहीं कि रैंडमली किसी को भी पता चला कि अच्छा ये 12 इन्वेस्टर्स हैं, इनको डियर ऑल करके, नहीं, ये नहीं करना है। नोबडी इज दैट फ्री ना कि आपकी एक रैंडम कोल्ड ईमेल को पढ़ने बैठ जाएगा, वो पढ़ेंगे भी नहीं, शायद से स्पैम में डाल देंगे या अनरेड कर देंगे। तो वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें इंश्योर करना है कि हम उन इन्वेस्टर्स को रिसर्च करें, हम उनके बारे में थोड़ा पढ़ें कि वो किस तरीके की इंडस्ट्री में, और हर कुछ आजकल हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। डोंट वरी कि हम ये कैसे, इफ यू आर देयर ऑन लिंक्डइन यू गेट सो मच ऑफ एक्सेस टू लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द इन्वेस्टर नेटवर्क। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करो कि वो किस इंडस्ट्री से हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ आइडिया आपको वहां से पढ़ के मिलेगा कि नो व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ही इज बीन डूइंग इन पास्ट। तो वो रिसर्च बहुत जरूरी है पहले कि आप जब आप उनको अप्रोच करते हो उससे पहले। एंड नेवर फेक योर नंबर्स। नाउ व्हाट डज दैट मीन? मान लीजिए आपका बिजनेस चल रहा है और आप यू आर मेकिंग हाइपोथेटिकली 2 लाख रुपीज पर मंथ, आपको अपने क्लाइंट से 2 लाख रुपए हर मंथ के आ रहे हैं आपके बिजनेस में, और आप 3 लाख रुपए अज्यूमिंगली सैलरीज और ऑपरेशन और यहाँ स्पेंड कर देते हो। तो बेसिकली आप स्पेंड ज्यादा कर रहे हो और आप अर्न कम कर लो। तो कई लोग क्या करते हैं, जस्ट टू टेक इन्वेस्टमेंट वो नंबर्स फेक कर देते हैं, वो 3 को 2 को 4 दिखा देंगे, ठीक है, या कुछ अगर 50 डाउनलोड्स हुए हैं तो उसको कुछ 100 डाउनलोड्स दिखा देंगे। आप कर सकते हो, आप करो, लेकिन आप ये सोचो कि द डे इट्स नॉट दैट दीज पीपल आर दे डोंट हैव ब्रेन्स, द डे दे कम टू नो दैट दीज नंबर्स आर फेक वंस दे आर पार्ट, आप सोचो आप हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, आप हमेशा के लिए अपनी रेपुटेशन को डाउन कर दो ये। एंड इंडस्ट्री में जो थोड़ा बहुत भी स्कोप है आपके लिए टू ग्रो इट टू द नेक्स्ट लेवल, वो खत्म हो जाएगा। तो चाहे प्रॉफिटेबल हो नहीं हो, एवरी इन्वेस्टर नोज हाउ अ स्टार्टअप वर्क्स। उन सबको पता है कि डे 1 से कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता है, या डे 1 से ऐसा नहीं है कि आप लाखों रुपए का रेवेन्यू करने लग जाओगे। इट टेक्स टाइम। आपके आइडिया में, आपके प्रोडक्ट में पोटेंशियल होना चाहिए, वो मैटर करता है। जरूरी नहीं है कि आपने डे 1 पे अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया तो वो इंप्रेस हो जाएंगे, वो गलत नंबर्स दिखा के आपको कुछ नहीं हासिल होगा। सो द बेस्ट थिंग इज जो है जेन्युइनली प्रेजेंट करो, उसके साथ ये बता दो कि हाँ अभी मेरा लॉस चल रहा है, अभी 1 लाख रुपीज में बर्न कर रहा हूँ या जैसे भी, लेकिन मेरा प्लान ये है कि विद दिस काइंड ऑफ फंडिंग
और इतने इन्वेस्टमेंट के साथ मैं अगले 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर ब्रेक इवन हो जाऊंगा या प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाऊंगा। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए विद करेक्ट नंबर्स, नो फेक नंबर्स एट ऑल। ओके, डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन्वेस्टर्स आस्क, मतलब वो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो थोड़ा सा मैंने आपको आवाज नहीं आ रही। We lost your voice. Hello, Nitika ma'am. हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। Ma'am, we lost your voice. Hello, can you hear me? Yes, now we can hear Okay. you. How much did we lose? I just did you guys lose me just now or has it been long? Like 1 minute or so. 1 minute? Just few seconds, yeah. Acha, let me just ask you guys. Just from the starting of this. Difficult questions investors ask? Difficult question. Yes, yes. Okay, perfect. ठीक है, मैं repeat करती हूँ इसको। I don't know, वो अपने आप म्यूट पे चला गया, पता नहीं। Okay. Technical glitches, I'm so sorry. Yeah. So, I was saying कि कुछ क्वेश्चंस लिस्ट करने की कोशिश की है जिसमें कि जस्ट जनरल क्वेश्चंस, जब आप इन्वेस्टर पिचिंग कर रहे हो या जब इन्वेस्टर आपसे मिलते हैं तो वो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग, कि मतलब क्या जो आप सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हो वो किस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं, किस चीज का सोल्यूशन देने की आप कोशिश कर रहे हो। उसके बाद हाउ बिग इज द मार्केट फॉर योर सोल्यूशन, मतलब आप बोल रहे हो कि हाँ मेरा सोल्यूशन ये है, बट डू यू थिंक कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सोल्यूशन के लिए मार्केट है? क्या इतने लोग हैं, क्या इतनी बड़ी आपकी मार्केट है जहां पे आप अपने आइडिया को लॉन्च करके उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो? हाँ, उस तरीके का आपका कितना बड़ा है वो मार्केट जिसके लिए आपने ये सोल्यूशन बिल्ड किया है। तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं। What is your team expertise to do this? आप supposedly हेल्थ केयर में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, आपने कुछ भी बनाया रैंडमली, जैसे आजकल हेल्थ केयर रिलेटेड बहुत प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रही हैं जो नई नई चीजें बना रही हैं। तो अब वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने हेल्थ केयर का एक प्रोडक्ट बनाया है, आपकी टीम में कौन है जो हेल्थ केयर या मेडिकल फील्ड से एसोसिएटेड है, किसको एक्सपर्टीज है इस डोमेन के बारे में, वो पूछ सकते हैं आपसे इस चीज के बारे में। एंड देन यू हैव टू जस्टिफाई दैट आपने एक इतने कोर फील्ड के ऊपर काम किया तो उसमें आपका एक्सपर्टीज है भी या नहीं। जरूरी नहीं है कि एज अ फाउंडर वो एक्सपर्टीज आप में ही होना चाहिए, लेकिन क्या आपके को फाउंडर में है, क्या और कोई जो आपकी टीम में सीनियर पर्सन है उसके पास है वो एक्सपर्टीज, वो आपको आंसर करना पड़ता है। हाउ मच ऑफ योर ओन मनी हैव यू इन्वेस्टेड। अब ओन मनी क्या है, जो हम बूटस्ट्रैपिंग की बात कर रहे थे कि जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने कितना पैसा डाला, अपना कितना पैसा डाला, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चंस क्यों बता रही हूँ, बिकॉज यू शुड, हमें ऐसा लगता है ना कि हम जाएंगे, हम बोलेंगे कि यू नो व्हाट, मेरा ये आइडिया है, आप प्लीज इन्वेस्ट कर दो, और वो बोलेंगे हाँ ठीक है इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं होता है। और ये मैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस बता रही हूँ जो कि डेफिनेटली पूछे जाएंगे, मतलब ये तो आप एस्केप कर ही नहीं सकते हो, ये बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस है। लेटर ऑन हो सकता है और भी डिटेल में चीजें पूछी जाए, बट ये तो फॉर श्योर आपको मेंटली प्रिपेयर होकर इन आंसर्स के साथ जाना पड़ेगा ही व्हेन यू आर अप्रोचिंग द इन्वेस्टर। ओके, फ्यू मोर क्वेश्चंस आर हु आर योर कॉम्पिटिटर्स, मतलब आप मार्केट में उतर गए हो विद सर्टेन प्रोडक्ट, अब आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास पिचेस आती हैं नेटवर्क में, देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। अब आजकल क्या हो रहा है, आजकल एडटेक सबको पता है, एजुकेशन टेक, ठीक है, एडटेक की बहुत कंपनीज, बहुत स्टार्टअप्स अप्रोच करती हैं फॉर फंडिंग। और फॉर एग्जाम्पल जैसे लास्ट 2-3 मंथ्स में मेरे पास बहुत सारी पिचेस आई जिनका कॉन्सेप्ट क्या था, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर K-12 स्टूडेंट्स की हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये वो ऑनलाइन कोर्सेज। अब आप सोच के देखो कि विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 months ही अगर सिर्फ हमारे अकेले के नेटवर्क में अगर 15 से 20 स्टार्टअप सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ आ रही हैं, एक ही आइडिया के साथ आ रही हैं, तो इमेजिन करो कितनी और स्टार्टअप्स होंगी जो ऑलरेडी उस डोमेन में काम कर रही होंगी, कितनी ऐसी होंगी जो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी होंगी। और आपको पता भी है टेक में कितनी स्टार्टअप्स हैं जो आजकल यू नो द बिग नेम्स, राइट, बायजूस, अनअकैडमी। तो ये सारे
क्या है, ये आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। तो जब आप अपने किसी आइडिया पे काम कर रहे हो तो आपको अपना कॉम्पिटिशन स्टडी करना बहुत जरूरी है। आपने सोच लिया कोई आइडिया और आपने स्टार्ट कर दिया और आप सोच रहे हो अरे मैं तो बेस्ट कर रहा हूँ या मैं बेस्ट कर रही हूँ और तो कोई कर ही नहीं रहा, ये ऐसा नहीं होता है। आपका कंपटीशन डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, और अगर आप अपने कंपटीशन को ही स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैंने 2 फीचर लॉन्च कर दिए हैं, पता चल रहा है जो आपका कॉम्पिटिटर है वो ऑलरेडी 10 फीचर लॉन्च करके आपसे ऑलरेडी बहुत आगे पहुंच चुका है। ठीक है, तो कंपटीशन होना कोई गलत बात नहीं है। एक ही इंडस्ट्री में, एक ही सेक्टर में अलग अलग स्टार्टअप्स बहुत आराम से एग्जिस्ट भी करती हैं, ग्रो भी करती हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स हैं कौन, क्या कर रहे हैं, कैसे वो अपने क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी ऑफरिंग्स क्या है, उनकी प्राइसिंग क्या है। ये आपका, जब आप अपना स्टार्टअप पे काम कर रहे होते हो, जब आप चला रहे होते हो ना, ये इनिशियल लेवल का आपका काम होता है, मार्केट स्टडी करना या कंपटीशन को स्टडी करना। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली इन्वेस्टर्स पूछते हैं, और वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हो। तो विच इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर डिफरेंशिएटर्स। फॉर एग्जांपल आपके कंपटीशन में 5 अलग अलग स्टार्टअप्स आपने बता दी कि हाँ ये भी सिमिलर काम कर रहे हैं, ये भी सिमिलर काम कर रहे हैं। नाउ दे विल आस्क यू, तो ठीक है आप 5 कॉम्पिटिटर्स बता रहे हो, आपका क्या डिफरेंशिएटर है, व्हाट इज योर यूएसपी। यूएसपी मीन्स यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप क्या वो एक चीज या 2 चीज या 3 चीजें कर रहे हो जो बाकी 5 नहीं कर रहे हैं। वो आंसर आपको करना पड़ेगा, और वो आपको पता भी होना चाहिए। बिकॉज अगर आपका डिफरेंशिएटर नहीं है, या अगर आप ऑलरेडी कुछ अलग नहीं कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटर से, तो आप कैसे उसके साथ compete करोगे। आप हमेशा बैकफुट पे चले जाओगे ना। तो इन्वेस्टर से तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, बट ये आपको भी इसका आंसर इंटरनली पता होना चाहिए कि मेरे डिफरेंशिएटर्स या मेरी वो क्या फीचर्स हैं जो मैं प्रोवाइड कर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारी एक पोर्टफोलियो कंपनी है बिरयानी बाय किलो। सुना है किसी ने नाम बिरयानी बाय किलो का? यस मैम। सुना है ना, वेरी गुड। तो हाँ, यस बहुत सारे यस आ रहे हैं, तो वेरी गुड। तो बिरयानी बाय किलो इज आवर पोर्टफोलियो कंपनी, जिसमें चंडीगढ़ एंजल्स ने भी इन्वेस्ट किया था एट अ स्टेज। तो अब क्या है, बिरयानी लाइक इट्स अ वेरी नॉर्मल कॉन्सेप्ट। क्या है बिरयानी, हम हर जगह खा सकते हैं ना बिरयानी। कितनी स्टार्टअप्स हैं जो बिरयानी सेल करती हैं, कितने आपको ब्रांड्स पता होंगे कि हाँ यार बिरयानी सेल करते हैं ना। व्हाई डू यू थिंक कि ये लोग बिरयानी बाय किलो स्टैंड आउट हुए, या जिस टाइम पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट रेज किया, इन्वेस्टर्स में उनके ऊपर ट्रस्ट करके उनमें इन्वेस्ट किया, और आज वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं अपनी कंपनी को। दे आर एक्सपैंडिंग पैन इंडिया। तो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन ये था कि उनको अपना डिफरेंशिएटर पता था, उनको अपने कॉम्पिटिटर से ये पता था कि हम कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि वो हांडी में, एक तो जिस हांडी में वो आपको सर्व करते हैं घर पे, लाइक आपको डिलीवर करके देते हैं, उसी हांडी के अंदर वो कुकिंग भी करते हैं। लाइक इन द मॉर्निंग इटसेल्फ बिरयानी उसी के अंदर कुक होती है और वो सील हो जाती है, और वही सील्ड बिरयानी आपके घर पहुंचाई जाती है जब आप ऑर्डर करते हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे बाकी लोग करते हैं कि सुबह बना के रख दिया और फिर जब किसी ने बोला गर्म किया और डाला डब्बे में और पैक किया और भेज दिया। तो ये उनका सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर था कि उनका जो था उसी बिरयानी में कुक होके और उसमें सील होके वो कस्टमर के पास जाता था। सेकेंड वॉज ऑब्वियसली द वे दे यूज्ड टू प्रेजेंट इट। वो एक नीचे कैंडल देते थे छोटी सी, उसको आप लाइट कीजिए और वो आराम से गर्म होता है और वो हांडी थोड़ी देर में, जो सील्ड हांडी है वो थोड़ी देर में खुल जाती है अपने आप। सो दैट वाज अगेन अ यूनिक प्रोपोजिशन, जो एक क्लाइंट के लिए या कस्टमर के लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है और बहुत प्लीजिंग एक्सपीरियंस होता है फॉर कस्टमर। तो वो एक उनका अगेन यूनिक सेलिंग पॉइंट था, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर रहा था। टेस्ट डेफिनेटली वाज अ यूनिक सेलिंग पॉइंट। क्वालिटी पे उन्होंने डे 1 से बहुत ज्यादा फोकस किया था। तो मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ विद दिस एग्जांपल इज दिस ओनली, दैट कॉम्पिटिटर्स को पता करना और उनके साथ साथ पैरेलल में ये आइडेंटिफाई करना कि वो 3 चीजें क्या हैं जो आप अलग कर सकते हैं, सो दैट यू आर एबल टू कन्विंस योर इन्वेस्टर कि ये देखिए सर, ये 3 चीजें हैं जो कोई नहीं कर रहा, तो ये मैं अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, डिसरप्टिव का मतलब क्या होता है? हाउ योर प्रोडक्ट इज डिसरप्टिव, कि वो कैसे एक चेंज लेके आ रहा है इन द हाउ इट इज कंप्लीटली चेंजिंग द कॉन्सेप्ट या जो थॉट प्रोसेस है। कितनी ऐसी स्टार्टअप्स हैं
जब वो आई तो हमें लगा कि यार ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी हो सकता है, मतलब दीज थिंग्स वर नॉन इमेजिनेबल, या हमें पता भी नहीं था कि ये ऐसे भी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब ऑनलाइन बुकिंग का जो कॉन्सेप्ट आया, हम लोग को सबको आदत थी सिनेमा हॉल्स में जाके टिकट खरीद रहे हैं, आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले सब कुछ कर रहे हैं ना, हमें वी वर यूज्ड टू इट। और सडनली कुछ ऐसा आया जहाँ पे हम घर पे बैठे हैं, विद इन 5 मिनट्स टिकट बुक हो गई, हम जा रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, वी आर इनसाइड। नाउ दिस इज कॉल्ड डिसरप्टिव, जो पूरे के पूरे थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है कि अरे यार ऐसा भी कुछ हो सकता है, राइट। वी नेवर एवर थॉट कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें कि हम लोग फोन पे बुक करेंगे और कैब्स हमारे घर के बाहर खड़ी होंगी और हम उनमें बैठ के चले जाएंगे टू आवर डेस्टिनेशन, हम ट्रैक कर पाएंगे, हमें अमाउंट ऑटोमेट होके आ जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। We never thought a concept like Paytm will come, जहाँ पे कि हम बैठे बैठे I don't remember, seriously I don't remember काफी टाइम से कि जब मैं कैश लेके जाती हूँ मार्केट में। Obviously कोरोना is one of the reasons, but the prime reason is convenience। एक बार स्कैन किया, विद इन मिनट्स आपका आपकी पेमेंट हो जाती है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप ट्रैक भी कर सकते हो आपने कहाँ पे क्या स्पेंड किया, आपको कैश नहीं कैरी करने की जरूरत। सो स्टार्टअप्स लाइक दीज हैव बीन डिसरप्टिव। तो क्या आपका प्रोडक्ट उस तरीके की लाइंस पे है कि जो मार्केट को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है? दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, हाउ विल यू मेक मनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने आइडिया बहुत अच्छा सोचा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सोचा है, इट इज इन अ वेरी गुड डायरेक्शन, बट will you make money? will you earn something out of it? will it be profitable? मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसमें प्रॉफिटेबिलिटी निकल के ही नहीं आ रही या पैसा बन ही नहीं रहा है, तो वो ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए एक क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आई थिंक जस्ट अ सेकंड, या नाउ व्हाट इज योर गो टू मार्केट स्ट्रेटजी? आपने कॉन्सेप्ट रेडी कर लिया, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अब मार्केट कैसे करोगे? बना तो लिया, सब कुछ हो गया, टीम ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर दिया, बहुत अच्छी UI UX हो गई। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐप बना ली, बहुत अच्छी ऐप बना ली, और आप उसमें फॉर एग्जांपल मैं आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, आपने एक ऐप बना ली जिसमें आप क्या कर रहे हो कि स्टेप्स काउंट कर रहे हो, लोगों के, लोग चल रहे हैं, आप स्टेप्स काउंट कर रहे हो और आप उनको कुछ पॉइंट्स दे रहे हो 1 2 3 4 हर स्टेप पे, और उसके बेसिस पे आप उनको कूपन कोड दे रहे हो, कुछ दे रहे हो। बना लिया, बहुत अच्छी ऐप है, साउंड्स वेरी गुड। अब लोगों को कैसे पता चलेगा? मार्केट कैसे करोगे? ये आपको पता होना चाहिए कि मैं इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने वाला हूँ या वाली हूँ। आई विल डू ऑनलाइन मार्केटिंग, आई विल स्पेंड दिस मच ऑन गूगल एडवर्ड्स, आई विल स्पेंड दिस मच ऑन फेसबुक एडवर्ड्स। तीसरा मेरा तरीका होगा कि मैं स्कूल्स या कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप करूंगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप मार्केट में कैसे जाने वाले हो। ठीक है, व्हाट आर योर यूनिट इकोनॉमिक्स? यूनिट इकोनॉमिक्स मतलब आपने यूनिट इकोनॉमिक्स को सिंप्लीफाई करती हूँ, आपने अपनी ऐप पे सब्सक्राइब कराने के लिए एक पर्सन के लिए, मतलब सपोज मैं एक यूजर हूँ, मैंने आपकी ऐड देखी, मैंने उस पर क्लिक किया और मैं आपके ऐप को डाउनलोड करके सब्सक्राइबर बन गई हूँ। तो आपने मेरे को अक्वायर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपए स्पेंड किए, तो क्या आप उसका 20 रुपीज, मतलब आप प्रॉफिट 10 रुपए कमा पा रहे हो उसके ऊपर, या 10 रुपए स्पेंड करके 10 रुपए बना रहे हो, तो वो जीरो हो गया। तो वो यूनिट इकोनॉमिक्स पता होने चाहिए आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में कि कितना लग रहा है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कितना इनपुट है और कितना आउटपुट है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कितना कमाने वाले हो बेचने के बाद, सेल करने के बाद। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वाई डू यू नीड मनी? अब अलग अलग रीजंस थे, जब मैंने आपसे पूछा आप सब ने अलग अलग रीजंस दिए, और हर स्टार्टअप के अपने अलग अलग रीजंस होते हैं। कोई कहता है मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे पास ऑनलाइन मार्केटिंग करने के या ऑफलाइन मार्केटिंग करने के पैसे नहीं है, तो ओके, मेरा 60% आपका जो आप फंड करोगे उसका बजट जाएगा मार्केटिंग में। कोई कहता है मेरे तो मार्केट बहुत अच्छे से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे पास टीम ही नहीं है इसको आगे लेके जाने के लिए, तो मेरा 40% जो अमाउंट है वो टीम बिल्डिंग में जाएगा। तो ऐसे ही आपका क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको क्लियरली एक पाई चार्ट में या ग्राफ के थ्रू बताना पड़ेगा इन्वेस्टर को, कि उस 100% मनी जो आप ले रहे हो उसका कितना पोर्शन किस चीज में जाने वाला है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट यू शुड नो वेरी क्लियरली। ठीक है, एग्जिट स्ट्रैटेजी फॉर इन्वेस्टर्स। एग्जिट स्ट्रैटेजी का मतलब है मैंने सपोज आज की डेट में आपकी कंपनी में 5 लाख रुपए लगा दिए। अब
अब क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, मुझे कब जाके एग्जिट मिलेगा आपकी कंपनी से, मतलब मुझे कब जाके कुछ 5 गुना वट एवर आई हैव पुट इन वो मिलने वाला है, या 6 times वट एवर आई हैव पुट इन मुझे मिलने वाला है, वो एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है, मैं क्यों आपकी कंपनी में पैसे स्पेंड करूं, या मेरे को क्या मिलने वाला है और कब मिलने वाला है, वो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे अपने इन्वेस्टर्स को, वो आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जब आप अपने फाइनेंशियल्स पे काम करते हैं, जब आप अपनी प्रोजेक्शंस बनाते हैं कि अच्छा आज हम ये कर रहे हैं, 2 साल के बाद हम एक नया राउंड रेस करेंगे हायर वैल्यूएशन पे, तो उस टाइम पे ये सारी चीजें आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने इन्वेस्टर्स को बताना होता है, ठीक है। अब इन्वेस्टर्स जो एग्जिट स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे थे, वो एग्जिट स्ट्रेटेजी और उनको वो कब पैसा बनाते हैं, मतलब इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है आपकी कंपनी में, वो कब पैसे बनाएंगे। पहला तो ये है कि आपके बिजनेस को कोई खरीद ले, यू नो, आपने पैसा लिया इन्वेस्टर का, आपने बहुत अच्छे से रन किया, यू आर प्रॉफिटेबल, यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ, यू नो, यू ग्रोइंग एट अ वेरी गुड लेवल, और आपकी कंपनी को किसी ने खरीद लिया या अक्वायर कर लिया, तो डेफिनेटली आपके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं जिन्होंने आपको पैसा दिया था, उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, उनके अपने मल्टीपल्स, उनको रिटर्न्स उनको मिल जाते हैं। न्यू इन्वेस्टर्स बाय शेयर्स एट हायर वैल्यूएशन। मान लो कि आज हर कंपनी, हर स्टार्टअप की जब आप फंड रेज करते हो तो आप एक वैल्यू लगाते हो कि मैं 2 लाख रुपए रेज कर रहा हूँ 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे, कि मेरी वैल्यूएशन यानी मेरी वैल्यू कंपनी की 5 करोड़ होनी चाहिए। वो वैल्यू कैलकुलेट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट फॉर एग्जाम्पल 2 लाख के अगेंस्ट आप 5 लाख में करने वाले हो वैल्यू, तो जब आपने वो 2 लाख रेज कर लिए, उसके बाद जब नेक्स्ट लेवल पे आप सपोज 30 CR की वैल्यूएशन पे कंपनी को पे फंड रेज करते हो 20 लाख रुपए, पहले आपने 2 लाख रेज किए थे 5 CR पे, अब आप रेज कर रहे हो, ठीक है, 10 लाख रुपए या 30 लाख रुपए 30 CR पे, वट एवर हायर उस पे चले गए आप अमाउंट पे, और वैल्यू हायर हो गई, तो जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको, जो आपके नए इन्वेस्टर्स हैं, उनके शेयर्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेल्स होती है, कोई और खरीद लेता है कंपनी को, उस पॉइंट पे आपको आपके इन्वेस्टर्स को दे मेक मनी। जब आपकी कंपनी लिस्ट हो जाती है, लिस्टेड कंपनी हो जाती है स्टॉक मार्केट में, देन ऑल्सो योर इन्वेस्टर्स मेक मनी। तो ये सारे मोड्स में आपके इन्वेस्टर को पैसा बन जाता है। ये सारी चीजें ऑब्वियसली जब आप इन्वेस्टमेंट रेस कर लोगे और उसके बाद जब आप अपनी कंपनी को ग्रो करोगे टू द नेक्स्ट लेवल, तब इनमें से क्या आएगा आपको अभी से नहीं आप बता पाओगे, वो आप देखोगे थ्रू योर जर्नी आफ्टर इन्वेस्टमेंट कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो। बट जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे, आपके प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे, आप ब्रेक इवन हो जाओगे, फिर प्रॉफिटेबल हो जाओगे, तो आप देखोगे ये सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी कि आपको आप नए आप एक बड़ा राउंड साइज रेज कर सकते हो, जैसे सीरीज ए सीरीज बी बोलते हैं, या आपकी कंपनी को कोई एक्वायर कर लेगा, या यू कैन सेल योर कंपनी टू एनीवन। तो वो सारी चीजें एट अ लेटर स्टेज आती हैं। बट दैट टाइम जो आपके उस टाइम के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इनिशियली आपको हेल्प की थी, एंजल इन्वेस्टर्स, वो पैसा कमाते हैं, ठीक है। वेंचर कैपिटल इज अ 1% बिजनेस, मतलब कि हर कोई जो अप्लाई कर रहा है उसको फंडिंग नहीं मिलती है, तो लेस देन 1% लोगों को फंडिंग मिलती है। लेस देन उन 1% जो फंडेड स्टार्टअप्स हैं जिनमें फंडिंग लग रही है, उनमें से 1% से भी कम होते हैं जो IPO स्टेज पे पहुंचती हैं। और मेगा एग्जिट्स भी उनमें से, मतलब 1% से भी कम कंपनीज है और जो अपने इन्वेस्टर्स को मेगा एग्जिट्स दे पाती है, मतलब एक बोलते हैं ना एक ह्यूज एग्जिट, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बायजूस, अनअकैडमी, ये सारी कंपनीज जो है अपने इन्वेस्टर्स को मेगा एग्जिट्स दे सकती हैं, बट हर कंपनी नहीं दे सकती है। तो ये बहुत लिमिटेड कंपनीज होती हैं, बट ऑब्वियसली देयर इज अ प्रोसेस, एवरी कंपनी हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो। तो सबका एम वो नहीं होता है, बट ऑब्वियसली जब हम फंडिंग रेज करते हैं तो हमारा इनिशियल एम यही होता है कि हम उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि पिच डेक। पहला स्टेप ही यही होता है कि जब आप किसी एंजल इन्वेस्टर या एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क को अप्रोच करते हो, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि वो हर कोई आपसे पिच डेक मांगेगा, या आपको बाय डिफॉल्ट अपना पिच डेक भेजना चाहिए, क्योंकि वो आपके बिजनेस को समराइज करता है। वो बताता है कि बेसिकली आपके स्टार्टअप में क्या क्या है, इट्स अ ब्रीफ समरी, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब कौन सी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, वो प्रॉब्लम बताओ पहले, ठीक है, पहली स्लाइड में कि ये प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट कर रही है। सेकेंड स्टेप में बताओ सोल्यूशन, कि ये प्रॉब्लम है,
ये मेरा सोल्यूशन है, ये मैं सोल्यूशन प्रपोज कर रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट मैं इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। थर्ड, प्रोडक्ट फीचर्स। आपने कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसका सोल्यूशन बताया, तो उस सोल्यूशन को आप कैसे कैसे टैकल कर रहे हो, वो 3, 4, 5 प्रोडक्ट फीचर्स कि मैं आपके पर्टिकुलर जो सोल्यूशन है, जो आपने ऐप बनाई है या जो आपने प्रोडक्ट बनाया है या जो भी बनाया है, उसके फीचर्स क्या है, उसके हाईलाइट्स क्या है, वो क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है। साइज ऑफ द मार्केट। साइज ऑफ द मार्केट मैंने आपको पहले भी बताया था। साइज ऑफ द मार्केट मतलब कि आप सपोज लेट्स टॉक अबाउट बेबी प्रोडक्ट्स। ठीक है, बेबी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। मान लो हम फर्स्ट क्राई की बात करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्राई जिस मार्केट को टारगेट कर रहा है वो बताएगा कि वो कितनी बड़ी मार्केट है। बेबी प्रोडक्ट्स की कितने बिलियन लोग यूज करते हैं, तो इट्स अ ह्यूज मार्केट। ठीक है, तो वो बताओ कि वो मार्केट का पोटेंशियल कितना है। उसी से पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट, आपका स्टार्टअप कितना स्केल कर पाएगा या कितना उसमें पोटेंशियल है ग्रो करने का। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साइज ऑफ द मार्केट बताओ। प्रोडक्ट फीचर्स, जैसे हम फर्स्ट क्राई का एग्जांपल ले रहे हैं, तो क्या क्या आप कर रहे हो। आप एक पेरेंट्स की कम्युनिटी बना रहे हो, बच्चे की फ्रॉम द बर्थ ट्रैक कर, मतलब प्रोडक्ट्स तो दे ही रहे हो, ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स तो आप सेल कर ही रहे हो, साथ में आप पेरेंट कम्युनिटी बना रहे हो, इंगेज कर रहे हो पेरेंट्स को। उसके बाद आप बच्चों की वैक्सीनेशन से लेके हर चीज ट्रैक कर रहे हो। तो ये आपके कुछ फीचर्स हैं जो आप उसमें बता दोगे। उसके बाद ट्रैक्शन मीन्स रेवेन्यू, यूजर्स। फॉर एग्जाम्पल आप मंथली बेसिस पे कितना रेवेन्यू, कितना पैसा आ रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, वो आप बताओगे। कितने क्लाइंट्स आपने ऑनबोर्ड किए हैं वो बताओगे, 2, 3 जो भी हैं टू बिगिन विद। इंगेज। उसके बाद अगर सपोज आपकी ऐप है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप गूगल एनालिटिक्स या आप ट्रैक कर सकते हो कि कितनी देर के लिए पर्टिकुलर, सपोज आपकी कोई ऐप है उसके 5000 डाउनलोड्स हो चुके हैं, एक यूजर एवरेज उस पर 5 से 7 मिनट स्पेंड कर रहा है। ठीक है, रिटर्न रेशियो कितना है, ये सारे जो भी आपके ट्रैक्शन है, मतलब जो भी चीजें दिखाने वाली हैं, हाईलाइट करने वाली हैं रिलेटेड टू योर स्टार्टअप और प्रोडक्ट, वो आप उस ट्रैक्शन वाले पेज पे बता सकते हो। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस मतलब कि आप क्या इस साल में आपका क्या रेवेन्यू है, करंट क्या चल रहा है, ईयर 2 में क्या होने वाला है, ईयर 3 में क्या होने वाला है, ईयर 4 में क्या होने वाला है, वो प्रोजेक्शन एटलीस्ट 5 साल की बना के आपको प्रेजेंट करना होता है। फंडिंग एज आई टोल्ड यू, कितना बड़ा अमाउंट चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, वो आप फंडिंग अमाउंट वहां पे बताओगे। उसके बाद आप बताओगे कि कहाँ यूज होगा, वेयर विल इट बी यूज्ड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया प्राइम एरियाज होते हैं ऑपरेशंस, मार्केटिंग, ठीक है, कुछ मिसलेनियस भी होते हैं, देन प्रमोशंस हो गए, ब्रांड बिल्डिंग हो गया, ठीक है, टीम एक्सपेंशन हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं आप वहाँ पे उसको ग्राफ के फॉर्म में या पाई चार्ट के फॉर्म में जैसे भी दिखाना चाहते हो आप बता दो कि 100% का ये ब्रेकअप होगा। उसके बाद टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जो फाउंडर्स या कोर टीम, एक तो हो गया फाउंडर्स, कौन कौन फाउंडर्स हैं, एंड देन कोर टीम, अगर सीनियर लोग हैं आपकी टीम के अंदर तो उनका रोल क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप IT बैकग्राउंड से हो तो आप बोलो आपका ऑब्वियसली रोल होगा डेवलपमेंट में। कोई MBA बैकग्राउंड से है तो उस फाउंडर का रोल होगा मार्केटिंग में। इसी तरीके से अगर कोई टीम है, अब उसमें ये दिखाओ कि कितने अच्छे से आपकी टीम डिस्ट्रीब्यूटेड है और कितने अच्छे से हर कोई अपना स्किल पे वो दिखा। इट्स लाइक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन विद अ पिक्चर कि क्या क्या अभी तक किया है, क्या बैकग्राउंड है, क्या रोल्स हैं और क्या स्किल्स हैं। ठीक है, ये आपको उस स्लाइड पे हाईलाइट करना होता है। तो बेसिकली ये सबसे क्रिस्प वे है अपनी पिच डेक को बनाने का। ठीक है, इस पिच डेक को आप जब रेडी करोगे तो इसमें ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा रिसर्च जाएगा, टाइम जाएगा, बट अगर आप ये अच्छे से रेडी कर लेते हो ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा फर्स्ट हैंड अप्रोच करने में भी। किसी को आपको हर चीज वर्बली नहीं बतानी पड़ेगी। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, जो जो एक आपका विजन है वो क्लियरली इसके थ्रू नजर आ जाएगा। एंड देन द इन्वेस्टर और द टीम और द नेटवर्क माइट अप्रोच यू seeing and looking at all those things, और फिर वो आपसे आगे कॉल्स कर सकते हैं, जैसे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो आई विल जस्ट क्विकली टेल यू, शो यू दिस Airbnb का पिच डेक। इसको फॉलो नहीं करना, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ। ठीक है, Airbnb तो सबने सुना है, राइट? तो इसमें क्या है कि बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको पता है कि आप लोकल्स के साथ रूम बुक कर सकते हो रादर देन होटल्स। मतलब उनके घर, लोगों के घर होते हैं, लोकल लोगों के, और वो अपने घर को बुक करने का ऑप्शन दे देते हैं। एंड इट्स अ
you know this company, like, right? It's huge. तो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ. इन्होंने क्या दिया, इन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया कि प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है जब कस्टमर्स बुक करते हैं. तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होटल्स नहीं, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है. तो और होटल्स का क्या होता है, मोस्टली जो बहुत अच्छे अच्छे होटल्स होते हैं वो आपको सिटी से थोड़ा दूर मिलते हैं, या जो जहाँ कोर कल्चर होता है ना सिटी का, वो वहां से बहुत दूर होता है. और उसके बाद कोई इजी वे नहीं है. तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि कोई इजी वे नहीं है. किसी के, अगर सपोज मैंने अपने घर को एयरबीएनबी में कन्वर्ट कर दिया है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ऊपर का पोर्शन, कोई अगर ट्रैवलर आ रहा है तो उसको दे दूं 3 दिन के लिए, या बुकिंग के लिए ऑप्शन रखूं, तो कोई कैसे बुक करेगा, किसी को कैसे पता चलेगा. तो ये 3 जो प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है. उसके बाद उन्होंने एक सोल्यूशन दिया. क्या सोल्यूशन दिया? एक वेब प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे यूजर्स अपने घर को रेंट आउट कर सकते हैं टू द ट्रैवलर्स, ठीक है. और उसमें क्या हुआ कि ऑब्वियसली क्योंकि मैं घर को दे रही हूँ तो मैं होटल जैसी प्राइसिंग नहीं रखूंगी, तो जो बुक कर रहा है उसके पैसे बच रहे हैं. मेरा बैठे बैठे मुझे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल गया क्योंकि मेरा एक पोर्शन अनयूटिलाइज्ड है. कोई जस्ट इंटरप्टिंग हियर, एयरबीएनबी का पिच डेक विजिबल नहीं है. विजिबल नहीं है? ओह, आई एम सो सॉरी. ओह, आई एम सो सॉरी. जस्ट अ सेक. Just a sec. Let me know if it is visible now. Yeah. Yes, ma'am. Yes. Okay. मैं जो मैंने बोला है वही है बेसिकली. जैसे मैं आपको एक सैम्पल पिच डेक दिखा रही हूँ बेसिकली कैसे बनता है. जो पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं ना, उसमें पहला था प्रॉब्लम. ये 3 प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको वर्बली बताई हैं बेसिकली, कि पहले उन्होंने फर्स्ट स्लाइड पे प्रॉब्लम बता दी कि प्राइसिंग, होटल थोड़े दूर होते हैं सिटी से, और कोई तरीका नहीं है रूम्स को बुक करने का. तो ये प्रॉब्लम थी. फिर जो सोल्यूशन उन्होंने बताया वो, उसमें वो क्या बता रहे हैं कि उन्होंने एक वेब प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे यूजर्स रेंट कर सकते अपनी, जैसे मैं अगर रेंट करना चाहूँ अपने फर्स्ट फ्लोर को तो मैं रेंट कर सकती हूँ ट्रैवलर्स को. उसमें दोनों लोगों का फायदा हो रहा है. जो बुक कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहा है जो बंदा, वो पैसे बचा रहा है बिकॉज होटल्स आर सुपर एक्सपेंसिव. आई एम मेकिंग मनी वाइल सिटिंग एट होम क्योंकि मेरा पोर्शन अनयूज्ड है. एंड कल्चर, क्योंकि आप मेरे घर में आ रहे हो, मेरे आसपास नेबरहुड है, आप कल्चर देखोगे कि हाँ लोग कैसे रहते हैं पंजाब में. कोई सपोज बाहर से आ रहा है, कोई असम से आ रहा है, या कोई आउट ऑफ कंट्री से आ रहा है, अब्रॉड से आ रहा है, तो वो देखेगा कि अच्छा पंजाब का कल्चर कैसा है, लोग कैसे यहाँ पे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, है ना. तो आप कनेक्टेड हो उस लोकल सिटी से. तो ये सोल्यूशन उन्होंने प्रपोज किया. मार्केट वैलिडेशन, मतलब कि मार्केट साइज क्या है. इतने लोग टेम्पररी हाउसिंग साइट couchsurfing.com पे इतनी थी, और टेम्पररी हाउसिंग लिस्टिंग्स इतनी सारी हैं, मतलब इतनी ज्यादा वो एग्जिस्ट करता है. और सॉरी, मार्केट वैलिडेशन है. एंड मार्केट साइज इज कि कितने बड़ी मार्केट अवेलेबल है उस चीज के लिए, कि जो ये बुकिंग का है ना पूरा आइडिया ऑफ बुकिंग होम्स एंड रेंटिंग आउट स्पेस, उसकी कितनी बड़ी मार्केट है. 1.9 बिलियन प्लस ट्रिप्स बुक्ड वर्ल्ड वाइड, मतलब इतने ट्रिप्स बुक होते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है. पूरी अवेलेबल मार्केट है इतनी बड़ी. उसमें से बजट एंड ऑनलाइन ट्रिप्स, मतलब कि कितना उस पोर्शन में से कितना पोर्शन है जो बजट ट्रिप्स होते हैं, कि मतलब जो लिमिटेड लोग चाहते हैं कि है ना चीप एंड बेस्ट टाइप कॉन्सेप्ट, और ऑनलाइन होते हैं, वो है 532 मिलियन. और ट्रिप्स विद एयरबीएनबी, मतलब इस तरीके का कॉन्सेप्ट कितना है, 10.6 मिलियन. तो इस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करा एयरबीएनबी ने, वो इन्होंने यहाँ पे सिग्निफाई करने की कोशिश किया. प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इस तरह का वेब प्लेटफॉर्म है. आप सिटी डालो, लिस्टिंग्स को सर्च करो, जो आपको लिस्टिंग पसंद आ जाती है कि हाँ यार ये घर, ये लोकेशन, ये जितना रहने की जगह एंड एवरीथिंग सूट्स मी, आपने बुक कर दिया. तो आपने अपना प्रोडक्ट बता दिया, उसके फीचर्स बता दिए. बिजनेस मॉडल, मतलब आप कमाने कैसे वाले हो, हाउ द एयरबीएनबी इज मेकिंग मनी. तो इतना जो शेयर ऑफ द मार्केट है, अब इतना $70 पर नाइट के हिसाब से 3 नाइट के लिए बुक हो रहा है, तो ये फीस हो रही है, तो इतना रेवेन्यू होने वाला. ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी ओल्ड पिच डेक, डू नॉट फोकस ऑन इट, ये अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है. तो दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस एंड लेट यू गाइज नो कि पिच डेक बनाया कैसे जाता है. बहुत ज्यादा कहानी क्लटर करने की जरूरत नहीं होती. जितना डिस्क्रिप्टिव और पिक्चराइज्ड और चार्ट्स के फॉर्म में बनाओगे उतना ईजी होता है समझने के लिए. जितना आप टेक्सचुअल फॉर्मेट में बनाओगे उतना ही कंफ्यूजिंग हो जाता है एंड डिसइंटरेस्टेड होता है व्हाइल रीडिंग. ओके, तो ये उन्होंने बता दिया कि हाउ दे आर मेकिंग मनी. देन मार्केट अडॉप्शन, मतलब अब मार्केट में कैसे आप अपने कॉन्सेप्ट को, यू आर टेकिंग इट टू द मार्केट. आप अब उन्होंने बताया कि हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे
जहाँ पे इतने लोग आते हैं, इतने इतने लोग, सारा बताया उन्होंने, ठीक है। पार्टनरशिप्स करेंगे अलग अलग लोगों के साथ जो ट्रैवल से रिलेटेड है। उसके बाद पोस्टिंग्स करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी ब्रांड बिल्डिंग करेंगे, मार्केट में अपने आप को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। फिर एज आई वाज मेंशनिंग, कॉम्पिटिटर्स कौन है। अब इन्होंने देखो 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया कि इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि ट्रैवल उसमें बुकिंग में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अफोर्डेबल एंड ऑनलाइन इन्होंने टॉप राइट पे कर दिया, अफोर्डेबल एंड ऑफलाइन लेफ्ट पे कर दिया, एक्सपेंसिव एंड ऑफलाइन इधर कर दिया एट द बॉटम लेफ्ट, और एक्सपेंसिव एंड ऑनलाइन राइट साइड पे कर दिया। तो दिस फॉल्स, एयरबीएनबी फॉल्स इन दी अफोर्डेबल ऑनलाइन कैटेगरी। तो इस तरीके से आप भी अपने कंपटीशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, इसमें क्या है, आप इजीली बता सकते हो कि अगर आपको लगता है कि आप अर्ली इन द मार्केट हो और कोई नहीं है तो आप वो बता सकते हो। होस्ट को क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इंसेंटिव मिल रहा है, वो बता सकते हो। ईज ऑफ यूज, प्रोफाइल्स, वो सब यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कि क्या क्या आपको लगता है कि आपके एडवांटेज है। सो दैट्स इट। इसमें टीम वगैरह का नहीं है, ठीक है, बट a brief idea on how to actually make a pitch deck, and these are the 7-8 points जो आपको अपने mind में रखने हैं while you are working on your pitch deck. Please make it very nice with the use of graphs, pictures. Do not make it textual. Do not add lot of bullets and points ऐसे कर करके, क्योंकि वो समझना और उससे information, आपने देखा कि इन्होंने कितना simple रखा है, but every slide when you go through it, it makes it very easy to understand कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, right? So this is about how you can create your pitch deck. This is your day 4 task. Prepare your pitch deck over the weekend and you can share in WhatsApp group for review. This was a brief on how you can make a pitch deck, how you can approach the investors, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या questions आपको पहले से ही clear होने चाहिए जब आप जा रहे हो to the investor. Before that, all these things should be crystal clear, because as I told you, and I'm giving you a very I'm not demotivating you, but the real story is कि हो सकता है कि आप 10, 15, 20, 25 इन्वेस्टर्स को अप्रोच करके शायद कोई 26वां हो जो आप में शायद इंटरेस्ट शो करे, एंड दैट टू इफ यू हैव पोटेंशियल. सो इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट अगर हम सारे प्रोसेस को, स्टेप्स को अच्छे से कंसिडर करके चलेंगे तो एटलीस्ट ये होगा कि आवर चांसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग आवर आइडिया वेल विल नॉट गो वेस्ट. At least we will be able to put across our idea in a more impactful way. We'll be heard. People will listen to us. Investors will give us a chance to listen. और अगर उनको कहीं पे ये भी लगेगा ना कि इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको सजेशन जरूर दे सकते हैं, बता जरूर सकते हैं कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, तो वो भी आपके लिए अच्छा है. कोई बात नहीं अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, क्या पता आपको कुछ अच्छे सजेशंस ही मिल जाएं, क्या पता आपको एक अच्छा मेंटर मिल जाए जो आपको आपके स्टार्टअप को स्ट्रीमलाइन कर दे या आपको हेल्प कर दे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए. तो कम से कम आप अपनी प्रेजेंटेशन तो इतनी स्ट्रांग रखो ना. फंडिंग नो फंडिंग दैट्स अ सेकंड स्टेप, बट अपनी प्रेजेंटेशन इतनी स्ट्रांग रखो कि आपको लोग सुने, आपको इम्पैक्ट, आपका जो आइडिया है वो इम्पैक्टफुली कम अक्रॉस हो और आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए, इफ नॉट एनीथिंग एल्स, राइट? So that's about it, Tanushri. From my end, I'm open to questions. Right, ma'am. It was really nice and very, in so less time, like it's just 1 hour and we have got so much information. I hope so. I mean, these are the questions which we are hearing from our students, from our startups, those who want to start even. They also ask these questions and I think आज उनके सारे questions का answer मिल गया. I'm happy. And, yes, and we also have few questions in the chat box. Oh, okay. Which, yes. Okay, I'll just see if I can see the chat box. Yes. So, ma'am, अगर हम शुरू से start करें, so we had a question when you were explaining about. So somebody has said that, मैम माय क्वेश्चन, अगर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया और आइडिया पर इन्वेस्ट किया है बट वो आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता है एंड बिजनेस क्रैश कर जाता है, तो हमें इन्वेस्टर को मनी वापस करना पड़ेगा? देखो, so
पहली बात तो ऐसे सोचो ही मत कि फेल हो जाएगा, बट यू नो दैट इज reality कि not every startup is successful and you know businesses fail and there is no harm. होते हैं business fail, ठीक है, इसमें कुछ problem नहीं है. And there are so many people जिनके startups fail होते हैं 3 startups fail and eventually the 4th one is a success. So it's completely okay. It's your journey. It is your entrepreneurial journey. तो अगर उस टाइम पे वो जब वो पैसे invest होते हैं investor के, तो बेस्ड ऑन कि किस सिचुएशन पे आपका क्लोजर हो रहा है या आप जब क्लोज कर रहे हो या आपकी स्टार्टअप यू नो बंद हो रही है, तो जब हम इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसमें भी बहुत सारे क्लॉज होते हैं, और जिस टाइम पे ये क्लोजर हो रहा होता है, बिकॉज इन अ वे इन्वेस्टर बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कंपनी, राइट. वो जब आप में इन्वेस्ट कर देता है तो वो एक शेयर होल्डर बन जाता है, तो वो आपकी कंपनी का पार्ट बन जाता है, और जब वो आपकी कंपनी का पार्ट बन जाता है तो इट्स लाइक मोर ऑफ अ म्यूचुअल डिसीजन एंड अ डिसीजन वेयर दोनों parties like founders and investors, they sit, they work out on the cordial way out जिसमें कि minimum loss हो in a way possible, and then that's how you mutually just leave that thing there. But इतना इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, because investors also somewhere in the mind know that all startups won't be successful. उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, तभी वो कोशिश करते हैं कि जितने भी रिस्क हैं इनिशियल लेवल पे उसको मिटिगेट कर लें, ठीक है, इनिशियल लेवल पे उसको सॉर्ट आउट कर लें. बट कई बार ये होता है कि जस्ट इन केस हो गई फेल स्टार्टअप तो नथिंग कैन बी डन, और उस चीज के लिए वो कॉर्डिल और आपस में कोऑर्डिनेट करके एवरीथिंग इज वर्कड आउट. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. दैट इज अ लेटर स्टेज और जो हो जाता है, राइट. That's really nice to hear. You know. Okay, so Tamanna had a question. What if we aren't left with any bootstrap money and our startup hasn't reached transaction, I think she wanted to write traction stage due to lockdown or any external reason, will investors still be willing to invest? Yeah. So Tamanna, I hope you are there. Yes, I'm there. Great. Yeah. Great. So Tamanna, this happens with a lot of startups actually, और actually क्या होता है ना, pandemic like COVID has actually impacted. अभी तो क्या है ना, most of you I am sure are at a stage where you've just started या आपने सोचना शुरू किया है, or you've just started working on your ideas, but we've actually seen startups who were doing extremely well suddenly you know losing it, and you know उनका जो ग्राफ है वो बहुत नीचे आ गया है because of you know such unexpected and sad situation like pandemic. तो होता है ऐसा, definitely होता है. But then that's the time when you need to actually, you know, take a informed decision that how you're going to take it. ऐसा नहीं है कि investor पैसा लगाएगा ये देख के कि pandemic हुआ है या नहीं हुआ है या you are making losses or profit. उनका concept, उनका investment thesis same ही रहेगा तब भी, कि आपका scope क्या है next level पे लेके जाने का. बहुत ज़्यादा impact नहीं होगा. अगर suppose आपके idea में potential है और आपका आइडिया नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर सकता है, तो वो इस चीज को एक बार के लिए साइडलाइन भी कर देंगे दैट हाउ पैंडेमिक इज गोइंग टू इम्पैक्ट इट, बिकॉज समटाइम्स इट्स स्टार्टअप्स फाइंड अ अपॉर्चुनिटी आल्सो ड्यूरिंग पैंडेमिक. वो इस टाइम पे फंडिंग लेके एक्सपैंड कर लेती हैं, और बाय द टाइम थिंग्स कम बैक टू द नॉर्मल दे कैन स्टार्ट टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल. तो ये सब कुछ सिचुएशनल है, लेकिन अगर आपका बूटस्ट्रैप जो मनी है वो खत्म होने वाला है, तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि ये जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है ये आपको पहले ही स्टार्ट कर लेना चाहिए. यू डोंट नीड टू वेट फॉर इट टू एंड, अदरवाइज वो पैनिक सिचुएशन हो जाएगी. या तो आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली को अप्रोच करना पड़ेगा, या आपको कहीं से यू नो वो लोन करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने इट्स अ लक फैक्टर ऑल्सो ना. हो सकता है आज आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो ढूंढना, मे बी यू क्लोज इट इन 1 month, बट इट माइट जस्ट टेक 6 months ऑल्सो. तो आप सर्वाइव कैसे करोगे तब तक, राइट? So you have to be prepared for all the situations. Start looking for fund at the right time once you don't need it. और second, अगर बिल्कुल ही ऐसी कोई situation आ जाती है, then you should be open to more of friends, family and fools वाला जो round जो मैंने आपको बोला है, because these are the people who will be ready to help you and in the immediate situation. And जब आपको वो help मिल जाती है, तो later on आप फिर उनको किसी भी तरीके से return कर सकते हो when you actually raise the fund round, and you can give them equity, या आप उनको बोल सकते हो कि हम रिटर्न कर देंगे, है ना, whichever way. This is something which you as an entrepreneur has to work out. You have to be prepared for these situations, right? Okay, ma'am. Yeah, great, come on.
Very nice. Ma'am, I think there are many students who are like, who are very skeptical and who actually fall in trap for few people who say कि आप pitch deck बना देंगे, हम आपको investor दिला देंगे. Like one have mentioned it also कि किसी भी ऐसे company को पैसा मत दो, भेजो जो आपको बोलते हैं कि आपको 100% investor देंगे. जैसे 15,000 या 20,000 मांगे आपसे, कंपनीज नेम नहीं लूंगा, बट yes we have found that मतलब students have come and said कि ma'am they are asking for this much money and they'll be preparing our pitch deck, they'll be doing our market research, and at the end of the day they don't get that result. So what will you say about it, or how will you advise them to go about it? Yes. So that's really sad that something like this is happening, but I will suggest you guys, आज की डेट में वी हैव द पावर ऑफ इंटरनेट, वी हैव द पावर ऑफ गूगल. आपको किसी की जरूरत ही नहीं है. यू डोंट नीड एनी पीपल लाइक दीज हु आर टेलिंग यू कि हम इन्वेस्टमेंट दिला देंगे, कर देंगे. बिकॉज क्या है ना, आपके पास गूगल, आपके पास लिंक्डइन है, आपके पास इतना अच्छा एक्सेस है जहाँ पे आप जाके चीज़ों को सर्च करोगे, आप एंजल नेटवर्क्स डालोगे, या फिर आप किसी भी इन्वेस्टर, these days we are aware of all those investors जो इन्वेस्ट करते हैं, या लिंक्डइन पे, या those people, just approach them. जैसे मैंने आपको बोला था, कोल्ड ईमेल्स मत भेजो, बट अगर आप प्रिपेयर्ड हो अपने पिच डेक के साथ, आप अपने कॉन्सेप्ट के साथ प्रिपेयर्ड हो, तो पुट देम विद एड्रेसिंग देम इन अ पर्सनलाइज्ड मैनर. अच्छे से एक ईमेल कंपाइल करो और उनको भेजो, डायरेक्ट भेजो. दे विल गेट बैक टू यू, इफ नॉट टुडे, इन सम टाइम. फॉलो अप विद देम, क्योंकि अब जो लोग आपको अप्रोच, आई एम नॉट सेइंग दैट देयर आर कंपनीज हु आर देयर जो बोलते हैं कि इतना दे दो, ये दे दो, तो वी विल मेक द पिच डेक फॉर यू. बट अगेन, इफ समबडी इज सेइंग कि हाँ 15,000 दे दो, पिच डेक बना के आपको इन्वेस्टमेंट दिला देंगे, तो वो आप वही समझ जाओ कि दे आर फेक. वो दिस कांट हैपन, नोबडी कैन गारंटी. ओके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दिला देंगे जैसा तो कुछ होता ही नहीं है ना. लाइक इट्स यू एंड द इन्वेस्टर, राइट? तो आपको ये वाले कॉन्सेप्ट में और इन चीजों में तो घुसना ही नहीं. और आप लोगों के लिए स्पेशली, you have such a, like, you guys are so lucky to have this whole group of people as part of your mentors in there, Tanushree ma'am, Vineet sir and other people जो आपको हर स्टेप पे गाइड कर रहे हैं. तो आप पहले अगर ऐसा कुछ कहीं से आप मैसेजिंग आ भी जाते हैं ना, प्लीज गेट इट वैलिडेटेड थ्रू देम. When you have the resources you can validate for you, तो आपको इधर उधर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है. पहले आप उनसे वैलिडेट करा लो, और सबसे पहला स्टेप है कि खुद से अप्रोच करने की कोशिश करो इन द राइट मैनर. हर चीज पिच डेक बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगर आपको अपने बिजनेस के सारे पॉइंट्स अच्छे से पता है, आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. और अगर आप डिजाइन भी कराते हैं तो देन ओनली पे फॉर द डिजाइन, डू नॉट believe that they will get you investment. हाँ, pitch deck बनाने के लिए, if you are okay to pay 10,000 rupees and somebody is making a pitch deck for you, that's fine. It's okay if you're okay to pay. But investment को ensure कर रहा है along with it, don't get in that trap. Okay, that is not going to happen. That's not the right way. Very true. So again, Tamanna has a question. She says it's a silly one. What if founder working on more than one startup? Suppose one is in product ready stage but not able to grow transaction due to any ordeal situation, like this situation, and other is in ideation stage. Will the investors still be interested in investing in any of the startups of the same founder? Yeah, देखो, again it's a very hypothetical and a situational thing, but हमेशा से ना people, जब आप पिच करते हो ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो क्वेश्चन आता है वो पूछते हैं, आर यू 100% एंड फुल टाइम कमिटेड टू द स्टार्टअप? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है. क्यों? क्योंकि इफ यू आर सेलिंग इन 2-3 बोट्स एट द सेम टाइम, तो आप किसी भी चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो. इसका मतलब, इससे क्या, एक मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि उससे इंप्रेशन क्या आता है कि ना तो आप ये अच्छे से कर सकते हो, ना तो आप इस आइडिया को लेके श्योर हो, ना आप दूसरे आइडिया को लेके श्योर हो. तो आप वो कर रहे हो कि चल ये नहीं तो ये सही. बट एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप अपने स्टार्टअप को लेके कंप्लीटली कन्विंस्ड हो दैट दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गो थ्रू, चाहे जैसे भी मुझे इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आप उसके साथ ही जाओगे एंड यू विल स्टिक टू इट एंड यू विल गिव योर 100%. अगर आपका माइंड खुद ही वो हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है कि मैं ये करूंगी, ये, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद योर आइडिया. Something is not right with the idea or the startup you're working in.
you're not convinced yourself, तो आप investor को तो कभी भी convince नहीं कर पाओगे, right? तमन्ना? Right, Raj. Yes. Yeah. Okay, great. I have a question, ma'am. Yes, Amit, please. Yeah. मैम जिन इन्वेस्टर को हमें रिलीज करना है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे या प्राइवेट प्लेयर्स होंगे? नहीं, ऐसा कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हाँ, तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझा देती हूँ. गवर्नमेंट ऑफिशियल आप म्यूट कर लो, मैं आपको समझा देती हूँ, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में आ गया. तो अमित, बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या इंडिविजुअल्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. दो तरीके से फंड रेज होते हैं आजकल स्टार्टअप में. एक होते हैं ग्रांट्स, एक होते हैं सीड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ग्रांट्स वो होते हैं कि जहाँ पे द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दे फील कि जैसे वो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया के थ्रू और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टार्टअप्स को एक किक स्टार्ट देने के लिए एक इनिशियल लेवल पे, जैसे बहुत ही अमेजिंग कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया है एग्रीकल्चर का, एग्री टेक का या हेल्थ केयर का, तो वो कहते हैं कि यू नो व्हाट, बहुत अच्छा पोटेंशियल है लेकिन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी पीओसी भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम आपको 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए ग्रांट दे देते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करो, रिसर्च करो, स्टडी करो, जो करना है करो. ठीक है, वी फील दैट यू हैव पोटेंशियल. एक तो वो तरीका हो गया विच इज यूजुअली डन बाय ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, बट प्राइमरीली गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स को ज्यादा प्रमोट करती है. सीड इन्वेस्टमेंट, जब हम एंजल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो एंजल इन्वेस्टमेंट ये वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास अपना खुद का पैसा होता है, विच दे आर मेजरली, मतलब प्राइमरीली, ये कोई ऐसे सेट रूल नहीं है, बट प्राइमरीली ये वो लोग होते हैं, ये खुद एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनको खुद अपने बिजनेस को रन करने का बहुत साल का एक्सपीरियंस होता है, दे made it big, they are doing well in their own companies, और इनके पास एक पैसा होता है where they want कि हम उस पैसे को इन्वेस्ट करें in the startups who have potential to grow. उसके दो रीजंस होते हैं. एक, obviously they want to make money, वो पहला तो एजेंडा यही होता है कि उनको भी दिखता है कि यार ये स्टार्टअप ग्रो करेगी तो इसके साथ साथ हमारा पैसा भी मल्टीप्लाई होगा. सेकेंड, दे फील कि वो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट के साथ उन नए नए आइडियाज के साथ जुड़ सकते हैं या उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो वो शायद अब इस स्टेज में खुद नहीं करना चाहते. लाइक अब वो 30 साल के बाद वो खुद से स्टार्ट नहीं करना चाहते कुछ, तो उनको लगता है कि वी कैन बी एसोसिएटेड विद सच स्टार्टअप्स जो ब्रिलियंट आइडियाज के साथ आ रहे हैं. उनको हम पैसे देके अलॉन्ग विद बीइंग पार्ट ऑफ द कंपनी उनको गाइड भी कर सकते हैं, एज एट द सेम टाइम वी कैन पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशनरी आइडिया. तो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ही होते हैं और ये अपनी कैपेसिटी में ही इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, नेटवर्क लाइक चंडीगढ़ एंजल नेटवर्क, मुंबई एंजल नेटवर्क, चेन्नई एंजल नेटवर्क, ये नेटवर्क बनाया ही इन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए गया है ताकि ये अलग अलग जगह पे जाके लोग इनको अप्रोच करें या ये लोगों को जाके ढूंढें. इससे अच्छा हम वो मैच मेकिंग कर देते हैं कि आप हमें अप्रोच करो, हमारे नेटवर्क में इन्वेस्टर्स हैं, हम आपके वैलिडेट करेंगे पिचेस को, डेक्स को, देखेंगे कितना पोटेंशियल है, शॉर्टलिस्ट करेंगे. शॉर्टलिस्ट करने के बाद हम अपने इन्वेस्टर्स के सामने आपको पिच कराएंगे और फिर वो जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कि फंडिंग, मतलब पैसा जाता है विद ऑल द, देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस, वो जो प्रोसेस है उसका फिर जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम ले लेते हैं. सो दैट राइट काइंड ऑफ मैच मेकिंग कैन हैपन. बट ये होते सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ही हैं और इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही इन्वेस्ट करते हैं. राइट, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Right. Amit, are you satisfied with the answer? Or you Yes, were looking ma'am. for anything? Okay, great. Satisfied, ma'am. Great. हेलो. Yes. जी, Yes, रविंद्र, Ravinder. please tell. हाँ मैम, मेरा ना दूध की डेयरी है जिसमें दही का प्रोडक्ट, और इसका आपके बारे में क्या है बताना चाहिए कुछ जी. क्या जानना चाहते हो आप एग्जैक्टली इसके बारे में? मैम हमारे ना दूध की डेयरी है ठीक है, और मैं सेक्टर में सप्लाई करता हूँ दूध सारा. तो उसमें वो लस्सी की पूछते हैं, दही के बारे में पूछते हैं, पनीर के बारे में पूछते हैं. तो वो इसमें मतलब मेरे 70-71 घर हैं जी. ठीक है तो जी. 2 किलो लेता है कोई चाहे, तो उसमें वो पूछते हैं कि जैसे दही है, लस्सी है, घी है, तो वो कैसे मैनेज करे कि उनको, मतलब अब तो दूध का है जी, मैं और प्रोडक्ट बढ़ाना चाहता हूँ जी. ओके, तो क्या कुछ. तो रविंद्र देखो, अब इसमें क्या है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, एक ऐसा बिजनेस रन कर रहे हो जो ऑलरेडी इतने टाइम से चल रहा है ना, तो एक उसका एक तरीका होता है कि आपको लोग जानते हैं आसपास और वो आपसे सेल करना शुरू कर देते हैं. मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट का तो आपको जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू कैन आपके प्रॉफिट होता है हर प्रोडक्ट में, आपका मार्जिन है, आप वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हो और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो.
आपके लिए आइडिया मैं अपनी तरफ से ये दे सकती हूँ कि आजकल ना लोग पैकेजिंग पे बहुत ध्यान देते हैं या मैसेजिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। वही दूध देंगे, सेम दूध जो हम सालों से पी रहे हैं, लेकिन उसको इतनी अच्छी बॉटल में पैक कर देते हैं और पता नहीं उसके अराउंड स्टोरी बना देते हैं कि इट्स स्ट्रेट फ्रॉम डेयरी और ऑर्गेनिक है और ये वो, तो लोगों को लगता है अरे पता नहीं हम क्या पी रहे हैं। तो इट्स अबाउट जो दिखता है वो बिकता है वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपनी थोड़ी पैकेजिंग को इम्प्रूव कर लो, ठीक है, थोड़ा सा और अपने प्रोडक्ट को कुछ अच्छा सा एक ब्रांड नेम रखो स्टैंडर्ड, कि लोग आपके ब्रांड से आपको याद रखें कि अरे अच्छा आप उसका वहां से दूध लेते हो, अच्छा ठीक है मैं भी आई विल ऑर्डर। तो मतलब आप जितना ज्यादा अब इस टाइम अपनी मार्केटिंग या ब्रांडिंग पे काम करोगे ना, उतना आपका ये ग्रो करेगा, उतना ज्यादा आप इसको एक्सपैंड कर पाओगे, ठीक है। तो इस स्टेज पे तो आपको बस यही करने की जरूरत है, जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उसके आगे व्हाट्सएप पे मैसेज अच्छे वो बैनर्स बना के ना व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करो अपने नेटवर्क में। जो लोग ऑलरेडी आपके कस्टमर हैं उनको भेजो कि हम ये नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। इनिशियली हो सकता है तो कुछ डिस्काउंट दे दो थोड़ा सा, है ना, कुछ जो भी आपको लगता है फिजिबिलिटी है कि 5% डिस्काउंट है अगर आप फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे हो या फर्स्ट मंथ के लिए ऑर्डर कर रहे हो। तो ब्रांड बिल्डिंग पे थोड़ा काम करोगे, स्टोरी बनाओगे, उसके अराउंड कहानी बनाओगे, तो आप डेफिनेटली इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाओगे। इस स्टैंडर्ड बिजनेस में तो फंडिंग के बारे में आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, मार्जिन रखो, उसके अराउंड ब्रांडिंग करो, अच्छे से मार्केट करो और आप इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो डेफिनेटली। ठीक है रंदर? थैंक यू मैम। ओके, बहुत अच्छा। ओके, मोस्ट वेलकम। मैम, कृष्ण हैज एन क्वेश्चन दैट क्या ये जरूरी है कि स्टार्टअप जब स्टार्ट करे तभी बेनिफिट हो? क्या हम जीरो बेनिफिट के किसी चीज को स्टार्ट नहीं कर सकते? So when it achieves something, then we start benefiting. अच्छा, अब I'm confused. Like last line से मैं confused हो गई हूँ. Is he saying that benefit किस way में? Like is he saying कि Krishan, are you there? You say it yourself. Like I didn't understand your question exactly. Benefit. Yes मैम, जैसे कि मैम what my question is कि आपने बोला कि जैसे हम स्टार्टिंग में कस्टमर ले रहे हैं तो वो 10 रुपए में जैसे हमने उस कस्टमर को अटेंड किया और हमें उस पे 10 का बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा, अगर उस पे हमें 10 का बेनिफिट नहीं हो रहा, जैसे हम 0 बेनिफिट पे कर रहे हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन उसमें स्टार्टिंग में मैम स्टिल हमें कस्टमर तो मिल रहा है ना, जैसे वो कस्टमर हमें एक बार मिल गया तो हम उसको एक टाइम के बाद उससे बेनिफिट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। वो मेरा क्वेश्चन है कि फिर वो बेनिफिशियल होगा ना? हाँ, बेनिफिट की बात नहीं की थी मैंने, यूनिट इकोनॉमिक्स की बात की थी। मैंने ये बात की थी कि आपको बेनिफिट डेफिनेटली, बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप्स हैं कृष्ण जो क्या करती हैं, इनिशियली 1 साल तक भी 1.5 साल तक भी फ्री मॉडल रखती हैं। उनको सिर्फ डाउनलोड से लेना देना है, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि पैसे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। डाउनलोड करो यूज करो, डाउनलोड करो यूज करो। यूजर एंगेजमेंट करते हैं, यूजर्स को एंगेज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सबको वो ऐप पता है, वो नहीं भूल गई, वो जो फिटनेस वाली ऐप है आजकल, कौन सी है? हेल्दीफाई मी। हाँ सॉरी, हेल्दीफाई मी। तो अब हेल्दीफाई मी डाउनलोड कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि सब लोग घर पे हैं, सबको लग रहा है कि अरे हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो आप डाउनलोड करो। वो आपसे पैसे थोड़ा ना चार्ज करते हैं, फ्री मॉडल है, आप ट्रैक करो, सब कुछ करो। उनका एम क्या है? उनका एम ये है कि वो डाउनलोड्स बढ़ाना चाहते हैं, यूजर एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, और उसके बाद एक पॉइंट के बाद जाके फिर वो उसको यूज करके वो आपको या तो आगे प्रोडक्ट सेल करेंगे या कोई प्रीमियम प्लान सेल करेंगे। वो उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो इसी तरीके से आपकी भी ऐसी स्ट्रैटेजीज डेफिनेटली हो सकती है। हो सकता है आपने ये प्लान किया हो कि जब तक 1 मिलियन डाउनलोड्स होंगे नहीं मेरे ऐप के, मैं पेड प्लान लॉन्च ही नहीं करूंगा। दैट इज कम्प्लीटली ओके, एंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन दो स्टार्टअप्स। मैं सिर्फ यूनिट इकोनॉमिक्स की बात उस वे में कर रही थी कि आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू बी क्लियर कि अगर मैं कोई कस्टमर को अक्वायर करने में कोई कॉस्ट इनकर कर रहा हूं तो कितने में सेल करूंगा, क्या करूंगा, वो मार्जिन आपको क्लियर होने चाहिए। आप चाहे 2 साल तक मत करो, लेकिन जब तीसरे साल में करना शुरू करोगे तब तो पता होना चाहिए ना। 10 को 20 में ही बेचोगे ना, 10 को 10 में बेच के तो तब फायदा नहीं है ना। मैं सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रही थी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स कम्प्लीटली नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको इनिशियल स्टेज पे ही मोनेटाइज करना है अपने डिलीवरीज को। बहुत लोग फ्री से प्रीमियम मॉडल पे जाते हैं और वो सक्सेसफुल भी होता रहा है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, ग्रेट क्वेश्चन। तो मैम, हाँ जी गगन, गगन वी कांट हियर यू, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। गगन, आप चैट बॉक्स पे अगर लिख दो तो इट विल बी रियली गुड, क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है।
Okay, तब तक we can take the question what other students have put in कि मैम क्या we can get money for from angel investors for research and development or prototype building. Yeah. मैंने ये क्वेश्चन अभी वैसे आंसर कर दिया है, बट मैं फिर से आंसर कर देती हूँ. यूजुअली जो रिसर्च वाला जो पॉइंट होता है या जो प्रोटोटाइप बिल्डिंग वाला होता है, यूजुअली इज सपोर्टेड बाय कॉलेज ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आजकल एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप्स हैं जिनका काम ही यही होता है कि उन आइडियाज को एक्सप्लोर करना और आइडेंटिफाई करना. और ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके बस, हाँ, उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपका सोल्यूशन है ना, वो किसी ना किसी वे में सोसाइटी को बेनिफिट करना चाहिए. ठीक है, अगर आप किसी भी सेक्टर में कर रहे हो, वेदर इट इज एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, हेल्थ, IT, EdTech, anything, but if it is impacting the society, it is helping the society, तो आप उस आइडिया के वो अच्छे से, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को, अगर आपने कुछ भी बनाया है, प्रोटोटाइप बनाया है, या कॉन्सेप्ट स्टेज में ही है या आइडिया स्टेज में ही है, उसको अच्छे तरीके से अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आपको ग्रांट्स मिलते हैं. और आजकल बहुत इजी हो गया है मिलना अगर उसमें पोटेंशियल है. एंजल इन्वेस्टर्स यूजुअली इस स्टेज पे नहीं आते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आते, मतलब इट्स लाइक अ स्टैंडर्ड थिंग. कई बार क्या होता है कि सम इन्वेस्टर्स आर फ्रॉम दी सिमिलर इंडस्ट्री, ठीक है, और उनको पता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट वर्कआउट हो जाता है या इसका POC हो जाता है और ये प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो ये एक्सेल कर सकता है. तो दे आर ऑल्सो ओके टू इन्वेस्ट, यू नो, एट दिस पर्टिकुलर लेवल जिसकी आप बात कर रहे हो. बट ये आपको जनरली नहीं मिलेगा, ये आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे इन्वेस्टर है जो उसी सेक्टर से है जिसमें आपका आइडिया है, क्या वो इंटरेस्टेड है इस तरीके के आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए. वो थोड़ा सा आपका एफर्ट बढ़ जाता है. यूजुअली नहीं होता है, बट अगर आप ट्राई करो तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते. प्रोटोटाइप स्टेज पे भी, आइडिया स्टेज पे भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट. बट एक लॉन्ग टाइम, एक थोड़ा आगे का प्रोजेक्शन आपके पास जरूर होना चाहिए कि अगले 3 साल पे आप कहाँ पे लेके जा सकते हो उस आइडिया को. ठीक है. Yes, ma'am. Gagan has asked, what if we are the only one in the industry? There is no such competitor in the industry. So how we'll pitch it to the investor? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है ये तो, अगर कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है. बट ये देख लेना कि सिर्फ कॉम्पिटिटर ही नहीं है कि मार्केट ही नहीं है उस आइडिया के लिए, वो दोनों चीजें देखनी इंपॉर्टेंट है. सी, इफ यू देयर आर कोई ना कोई ऐसी स्टार्टअप तो होती है ना जो फर्स्ट प्लेयर होती है एक इंडस्ट्री के अंदर, एक सेक्टर के अंदर. कोई हर एक स्टार्टअप आती है, फिर उससे इंस्पायर होकर देन देयर कम्स, यू नो, लॉट ऑफ अदर स्टार्टअप्स. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके, बट यू हैव टू बी श्योर. मतलब आप घर बैठे बैठे ये सोच रहे हो कि मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, वो नहीं होना चाहिए. यू हैव टू डू योर प्रॉपर रिसर्च, यू हैव टू डू योर प्रॉपर मार्केट रिसर्च, वैलिडेशन एंड एवरीथिंग. फिर ये कंक्लूड करो कि आपका कॉम्पिटिटर नहीं है. और अगर आपके पास वैलिड आंसर्स हैं इन्वेस्टर को कन्विंस करने के लिए कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और जो मैं कर रहा हूँ वो यूनिक है और ये डिसरप्ट कर सकता है उस पर्टिकुलर सेक्टर को, वेरी गुड. आपके तो चांसेस बढ़ जाएंगे इन्वेस्टमेंट के. दैट इज मोर, आई मीन, देन यू नो देयर इज नो लुकिंग बैक. फिर तो इन्वेस्टर वुड बी मोर देन हैप्पी टू इन्वेस्ट, राइट. तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कॉम्पिटिटर नहीं है तो आप पिच नहीं कर सकते. ठीक है. Gagan, I hope it is the answer is satisfying. Okay, Aman, the question was already answered by ma'am that क्या हम एक startup के साथ और भी startup parallelly कर सकते हैं. She had already answered it. So if you are still not satisfied, then we can answer it again. Okay, there's no other. So yes, anybody? Okay, we have one question from Manjeet Singh Huda. How investment from angel investors work when we don't have own investment or low investment? For example, if I get investment of 1 crore from investors but I don't have my own investment, is that mean I am working to grow only investors' money? No. Who's this? Manjeet? Yes. मंजीत, देखो, अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया नहीं और आपको डे 1 पे ही कोई एंजल इन्वेस्टर मिल जाता है हु सेज, यू नो, आई विल फंड योर आइडिया और 1 करोड़ मैं इन्वेस्ट करूंगा, और आप आइडिया स्टेज पे किसी इन्वेस्टर को ले आते हो,
आइडिया आपका है, स्टार्टअप आपका है, बिजनेस आपका है, आप उनको सिर्फ इक्विटी देने वाले हो। वो आपका डिसीजन है कि 100% जो इक्विटी है आपकी कंपनी की, उसमें से आप कितना शेयर अपने इन्वेस्टर को देना चाहते हो। बट अल्टीमेटली वो कंपनी तो आपकी है ना। अब वो आप 20% देना चाहते हो, 30%, आपका अपना डिसीजन है। बट कोशिश यही होती है हर स्टार्टअप की कि वो अपनी जो इक्विटी है वो कम से कम डाइल्यूट करे और मैक्सिमम जो शेयर है कंपनी का वो उसके पास रहे। बिकॉज अल्टीमेटली आइडिया और एफर्ट और हार्डवर्क तो सब आपका ही होने वाला है, इन्वेस्टर का तो सिर्फ पैसा है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर का पैसा ग्रो हो रहा है तो आप भी तो ग्रो हो रहे हो, यू आर ऑल्सो ग्रोइंग ना। उसका तो इन्वेस्टर का तो कुछ पोर्शन ग्रो हो रहा है, आप यू आर ग्रोइंग एज अ होल, योर कंपनी इज ग्रोइंग एज अ होल। तो ये नहीं है कि अगर आपको कोई इन्वेस्ट कर रहा है 1 करोड़ रुपए तो वो 1 करोड़ आपके नहीं है, वो आपके ही हो जाते हैं। इट इज योर मनी ओनली, इट्स जस्ट दैट व्हेन इट मल्टीप्लाइज, तो जितने परसेंट में वो इन्वेस्टर आपकी कंपनी आया है उस परसेंटेज के हिसाब से उसको अपना मल्टीपल मिल जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली इट्स योर ओन स्टार्टअप एंड बिजनेस। If there is a problem, yeah, I think that should be the last question today. Okay. It's already 1.5 hours that we are running this session. Okay. So if there is a problem which can only be solved by cooperation and not competition, how to get it? I didn't get this question. Acha, matlab non-profit type. If I'm not, Lavish, are you talking about a social idea? If I'm not. Yes, ma'am. He has already written that plastic or e-waste recycling, like these are the social initiatives. Yes. तो लविश, इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एंजल नेटवर्क्स भी हैं, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो सोशल आइडिया में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनका फोकस ही यही होता है कि वो उन आइडियाज पे फोकस करें जो सोशल, जिनका देयर इज सम रिलेशन टू द सोशल कॉन्सेप्ट। फॉर प्रॉफिट होते हैं वो, लेकिन सोशल एक एंगल होता है उसके अंदर। तो अगर आपका आइडिया अच्छा है और इट हैज पोटेंशियल टू ग्रो, देन डेफिनेटली people will invest, there is no problem in that. But अगर आपका कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपका आइडिया स्टेज पे और आपको पैसे चाहिए टू रिसर्च और उसका POC बनाने के लिए आपको पैसे चाहिए और उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे चाहिए, तो आपको ग्रांट्स पे फोकस करना चाहिए rather than सीड फंडिंग। ये आपको तनुश्री मैम भेज देंगे डिटेल्स। Yes. I'll share with her. And to Divakar's question, Divakar, एक स्कीम की ना अभी हम आज बात ही कर रहे हैं। आज हमने टीम में सर्कुलेट किया है, SSCC टीम में। तो सारे स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स को आइडेंटिफाई करना है, कुछ स्टूडेंट्स को जिनको हम एक ग्रांट दिलाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। आपके जो रिस्पेक्टिव सेंटर हेड्स हैं, they'll reach out to you एंड वो आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगे। बट वो अपनी लिस्ट वगैरह बना रहे हैं, अगर आप एलिजिबल होंगे उसके लिए तो हम गवर्नमेंट फंडिंग की, गवर्नमेंट ग्रांट्स की हम वो कर रहे हैं। जो आपने नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का पूछा है यार, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस व्हिच कैन जनरेट ग्रांट फॉर प्रोटोटाइप बिल्डिंग, वेरी हार्ड टू से। जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं मोस्टली वो ग्रांट्स नहीं देते, ठीक है। मेजरली जो ग्रांट्स आती हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ही आती है। और फिर भी कुछ एक इंक्यूबेटर्स हैं, इन टाइम हम उनके नाम रिवील कर देंगे, जो ऐसी स्कीम्स को रन कर रहे हैं व्हाइल वर्किंग विद द गवर्नमेंट। ऐसे कई सारे नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। इंक्यूबेटर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट मनी को ग्रांट की फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं। तो उसकी हम कुछ टाइम में ऐसी लिस्ट रिलीज कर देंगे जिससे आप देख सकते हैं उसके बारे में। ठीक है नितिका, थैंक यू सो मच। हियर इज अ पार्टिंग नोट, आज शाम की चाय मेरी तरफ से। इट वाज अ वेरी गुड सेशन। थैंक यू एंड आई होप I'll just say that I hope आप सबको कुछ ना कुछ हेल्प हो गई उससे। एंड definitely, and also Tanushree, in case just anybody needs any further help or guidance or anything, I will be more than happy to help. And just a reminder everybody, you got the format, आपको नितिका मैम ने पूरा समझाया है कि पिच डेक कैसे बनाना है। और उसके साथ आपको रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं हम कि आप अपना पिच डेक बनाइए एंड उसको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट कीजिए ताकि हम उसको रिव्यू करें एंड आप लोग रेडी हो सकें। नेक्स्ट वीक का जो फाइनल डे आपका होगा
पिच टू विन वाला जो आपको पता ही है, द लास्ट डे इज अबाउट पिच टू विन. देयर आर प्राइजेस फॉर यू. तो उसके लिए आपको अच्छे से पिच करना है. तो उस पिच की प्रिपरेशन के लिए आपको अपना पिच डेक रेडी करना है और रिव्यू कराना है, ताकि आपकी जो भी कुछ उसमें इश्यूज हो, कोई भी शॉर्टफॉल्स हो, वो हम आपको बता दें. तो ये आज की प्रेजेंटेशन और सैम्पल पिच डेक ये हम व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर देंगे. यू कैन टेक रेफरेंस ऑफ द सेम एंड मेक योर ओन पिच डेक. थैंक यू वेरी मच. अमनदीप, प्लीज अगर आपको हमें कनेक्ट करना है, यू हैव नंबर्स, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस. अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट विनीत सर इफ यू नीड हिज हेल्प, राइट? So please contact us on the WhatsApp group which we have created. That group is only for all the startups across all the centers. कि आप लोगों के जो भी problems हैं, जो भी challenges आप लोग face कर रहे हो, हम उन चीज़ों को resolve कर सकें, right? So you can always contact us. Yes. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you for giving us such a great time of yours. It's been like 1.5 hours and I didn't get it. I didn't realize that it's so much time, because these questions come every day to us, and it was so easily explained by you. So I hope, and as the students are also and the startups are also saying they have really liked the session, and they have so thank you so much. Thank you everyone. All the best, guys. Stay safe, stay happy, stay positive, or whatever, in whatever way I can help in future, I'll be more than happy. Thank you, everyone.